Good evening, friends. It's a bit late in the night, but a lot of people say we should have a space tonight. So here we are. From 17,000 onwards, I've been feeling that this is the top. This is the top. This is the top. But I never ventured in and played the market fully. Today, at Nifty future at 19,570 or 80, when it slid 30 points, I took a very big gamble. I put in four. One in Nifty options, which I totally against, but I couldn't resist, and three in stock options. Now in Nifty, I have bought a dip in the money, so my loss is very limited. In stock options, deep in the money, four strikes above, and out of the money, four strikes below. So totally four deployed, expecting around 20 to 25 as payoff. Because there is no further scope for the stock to expand. How much one gentleman, अपने HSS says, रिलायंस 5,000 हो जाएगा ना व्हाट ओके हो जाएगा चलिए तो फिर आप 5,000 क्यों 10,000 ही बोलो 10,000 ही क्यों 20,000 बोलो बोलने में क्या जाता है बट रियलिस्टिकली semblance will prevail in this market. ये 2 साल 3 साल बहुत सब लोग ने मस्ती किया. Every individual is a fund manager. That's so pathetic. Yesterday I was in one space. That gentleman would give opinion on each and everything. EV, green energy, sugar, commodity. मैं सोचू इतना नॉलेज तो कैसे हो सकता है इतना यंग लड़के में but they are only talking. They don't know a fig. Similarly, I don't know a fig about most of the things. Such an idiot. I wouldn't know most of the companies that are recently listed. And I don't want to understand them at this juncture because, anyways, the issue is at so much inflated price. And above that, I have to pay 100% premium. So, what is the sense? As and when markets go down, semblance will prevail. People will realize what they bought, and then it would be too late. And anyway, I don't have that much money. I can keep on buying things. ये भी ले लिया ये भी ले लिया क्या है क्या पागल है क्या वो कोई बोलने वाला नहीं है तुमको इसके लिए ये भी लेता है वो भी ले मत करो ऐसा रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ हिस्ट्री ज्योग्राफी समझो फंडामेंटल बाद में समझो हिस्ट्री ज्योग्राफी समझो क्या भाव था ना आप क्या भाव में ले रहे हैं आई वोंट टेक मच ऑफ योर टाइम फॉर श्योर दिस टाइम आई एम invested and I have put my money where my mouth is. Otherwise, it was all lecture. I never played Nifty, Bank Nifty options, ये वो. ये आज मैंने दम लगा के खेल लिया. अब दूसरा बात है. SRF was 2,600. Open interest was 21 lakhs. Today the price is sub 2,200 and open interest is, believe it or not, 53 lakhs. Just stock futures, options separately. I know how many options I have. So what are you, matlab what? You are just accumulating everything in futures. આપણે NTPC 7 लाख
HDFC Bank, all option and open interest. 20 crore. That's 32,000 crores. Great. ITC 7-8 crores stock future. ऐसा पागलपन मैंने कभी नहीं देखा है. And the open interest when Nifty was around 17,000 was 1,40,000 crores of all stock futures put together. But now the total is 2,33,000 crores. The market cap of India is almost 300 trillion, and out of that, you are doing this 2 trillion. I think sooner or later, not sooner, I think with HDFC results on 17th, you will see mayhem. Mayhem. Who is left to buy HDFC Bank? Except maybe Rohit Bhai, but he will seek to buy at 1100. तो आप किधर जाओगे? So net all levels have breached, as we see on TV. I don't see, but my wife watches and tells me about it. So please, and actually speaking, I would be very happy if you get hurt, because in spite of me barking so much, और एक दूसरा बात है भाई, आई एम इन नो कंपटीशन विथ एनीबडी. तुम्हारे को जो अच्छा लगता है लो, और बुरा लगता है बेचो. मेरे को क्या लेना देना तेरे से, ना जान ना पहचान. आई ट्वीटेड समथिंग, somebody wrote, अरे तू तो एमएनसी लेगा, वो कौन सा एफआई लेगा. अभी क्या बोलेगा, एफआई एमएनसी लेगा नहीं लेगा, तेरे को क्या प्रॉब्लम है. नॉनसेंसिकल टॉक्स. एनीवे, रोहित भाई चलिए आप बोलिए. Yeah, good evening. गुड Uh, इवनिंग. I was just listening to your data point on the futures thing, so I'll just highlight from a slightly different angle. If what I do, and this is the data is there now on strike at least till 2012. I have it till 2000. We'll put it also soon. The basically you take the total futures open interest, जो total है, मतलब all put together. And if we plot it on a chart, you will find that okay, it is rising over a period of time. Market घटता है फिर rise होता है तो उसके साथ rise करता है. So when you look at purely the value, it will look like a higher and higher value over time. But when we are trying to say that today's value is too high, then how should we determine that? So the way I think about it is you take a ratio chart with the index, because if index goes up 50%, my futures open interest also goes up by 50%. So when would it be too much? If the futures open interest goes up more than the index, मतलब लोग नो आई, ज्यादा पोजीशन ले रहे हैं, then the index has gone up, then it नहीं becomes रोहित an भाई, हाँ सॉरी. yeah I think when it was 17, 500, hmm, open interest value was 1.4 lakh crore, hmm. and now it is 2.33 lakh crore. Fair enough. So that is a comparison from 17,000 to 20,000. I am trying to compare a slightly longish period. Yeah, I'm taking almost, I'm saying 20, when I look at a 20 years of data, na, so if I look at, when I do this ratio, what I said, कि if I divide the open interest by the index, जो 2008 का पीक था ना, वो भी हमने क्रॉस नहीं किया है अभी. You see the context now, when we really think long term, 2008 से फ्यूचर्स ओपन इंटरेस्ट घटा, उसके बाद बढ़ रहा है सालों से, इंडेक्स भी बढ़ रहा है. So on a ratio basis, we haven't gotten back to that peak. And we've remained somewhere in between. It was coming close to that in 2020, and then it fell. Then it didn't go to the bottom end of the range also in 2020 bottom.
and now it is coming back up, but it is not yet at the top end. So on that ratio basis, we haven't really gone to the extreme in futures that we have seen before. And part of the reason will be earlier probably there were no market-wide limits which have increased and are all there now. You cannot increase a position beyond a point. Then there No, are but increased margins and so many measures which are keep it from going to that point. no, but also another thing now, Rohit bhai, the volume has come down drastically. So Hmm. if the same position of 2008 were to be unwound now, it would take 4 days. And with Hmm. this kind of volume, ये पोजीशन को अनवाइंड होने में 8-9 दिन लग जाएगा. Hmm. I don't know whether I'm making sense or not. Probably I think one reason why what I'm observing may be true is because वो option में चला गया है. हाँ, नहीं वो ऑप्शंस का छोड़ दो ओपन ना. इंटरेस्ट तो बहुत बढ़ गया. नहीं नहीं नहीं, उसका मतलब ही नहीं है ना. अपने को हाँ. क्या मतलब है Hmm. ऑप्शन का और स्टॉक फ्यूचर्स का? Yeah. क्या मतलब है? Hmm. No, Sharad bhai, Rohit, I'd ये like भी to add. So I think the 2 points you highlighted, उसमें तो एक सबसे important point यही है कि the leverage at that point in time was like 20. We can't even figure out. I think it was more than 20-30x leverage उस समय जो चलता था. So compared to that, I think right now the leverage is very less. So I think that data itself on the future side becomes little uh, non-comparable because the leverage part, if you multiply it with leverage at that point in time, you will definitely get a much higher figure. If you assume that the same leverage is provided right now, then this whole figure will be at least 3-4 times higher in those terms. So we have to also think from that angle, and that is where possibly, नहीं. सर्वेंद्र, yeah. as a prudent trader, I wouldn't care a fig about the past. Okay, because everything has changed dramatically. Everything has changed. What is constant? Nothing except 20 scripts in Nifty. Everything has changed. No, so So, that at that point in time leverage के साथ साथ उधारी मिलती थी. मतलब you were able to get that funding. डेबिट में भी अकाउंट चलते थे. You are in a debit still the broker allowed you to take positions. वो सब अब नहीं हो रहा है. इसीलिए वो possibly वो fall जिस तरह का पहले आता था वो नहीं आ रहा है. That can be one of the reasons that possibly इंडिया में उस तरह के फॉल नहीं आए जैसे यूएस में आए बिकॉज वहां पे लेवरेज ज्यादा था अभी इस बार भी. So this time around our leverage, since the leverage has been controlled to lot extent and the market wide limits are also kind of less, इसके लिए possibly वो fall जिस तरह के चाहिए उस तरह के आए नहीं compared to what the globe did. All leading indices what they did, I think comparatively हम तो उतना गिरे भी नहीं है. दाव तो अभी भी नहीं दाव नहीं. तो अभी भी टॉप से 10% नीचे ही चल रहा है. तो हम तो ऑल टाइम हाई पे My चल रहे हैं. view is very different. My view is very different. जितना वॉल्यूम है और ओपन इंटरेस्ट है, तो उस वो 5-6 दिन का वॉल्यूम से ओपन इंटरेस्ट खत्म होता है. तो काहे का लिक्विडिटी है? इलिक्विड मार्केट है. 100% डूब जाएगा. एक दिन का कोई एक टिचकी मारेगा ना, गिर जाएगा. तो ये फंडामेंटल का बात मत कर सर्वेंद्र भाई. सच्ची बोलता हूँ. आई एम लुकिंग एट अ फॉल. आप सोचा नहीं होगा. ये जो रिलायंस में डीमर्जर है और आज 2740 का भाव था, 43. लिख के रखो. इतना माल फूटेगा ना ये डीमर्जर के पहले, कोई हिसाब नहीं है. तो कौन कौन संभालेगा ये सब? वॉल्यूम ही नहीं है. That I agree. मैंने That I अपनी agree. If the market starts falling, volumes just run away. इस भाव से participation तो कम हो जाएगा. Already कम है और भी कम हो जाएगा. So yeah, that impact cost and that impact can be huge. So that we'll only know once we start falling. अरे कोई भी ट्रेडर को बोलना 10 लाख रुपया दे, उहाँ उहाँ करेगा. अब पापा को पूछना पड़ेगा, मम्मी को पूछना पड़ेगा. है ही नहीं किसी के पास पैसा. सब इन्वेस्टेड है, फुल इन्वेस्टेड. That I agree to large extent. I think बहुत सारा
इस बार कमिटमेंट बहुत हाई है, बहुत पैसा आ चुका है बाजार में, अब तो स्टॉक भी नहीं बचा है लेने के लिए, लोगे कहाँ से, फ्री फ्लोट ही खत्म होते जा रहा है। But to that, Sharadji, I replied something to you on Twitter, and I was just wondering, Hmm. this low volume rally, or rather lack of selling, or what it is. See, there has been a significant amount of skepticism everywhere. I mean, not just India, US. US, so I have seen the highest skepticism of my career probably in this particular move. Which means that participation is actually very, very low, or people have either not participated or they have sold and gone. Nobody wants to, everybody is waiting for it to come down to buy or something like that. तो माल किसी के पास होगा तो वो बेचेगा, लेके कौन बैठा है? या तो कोई ऐसे स्ट्रॉन्ग हैंड लेके बैठा है जो कह रहा है नहीं सबको आने दो तभी मैं छोड़ूंगा। रोहित भाई, हम्म Everyone लाइफ, asking the एक same मिनट question. एक मिनट एक हम्म मिनट, लाइफ में है ना, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग मैन देखा, कुछ नहीं, कुछ नहीं। We have to understand whether this is आपड़ी enough or not. Enough, okay. More than enough, okay. Now there is a problem. बस उधर अटैक मारो ना, 4 लगा है तो मैक्सिमम 2 चला जाएगा, वो क्या प्रॉब्लम है? लेकिन ये खेलना पड़ेगा। And I'm very confident, sir, the way the Nifty is moving, somebody is just trying to hold it with all the might. वो नहीं चलेगा ज्यादा टाइम। या अनंत, ये confusion क्यों हो रहा है समझ में नहीं आया, but बस you, on one hand, Rohit, you are saying volume नहीं है, वो है, ये है, whatever, all that argument aside. Now, for a minute, indulge me. 2008 wave 3, हम्म 2020 wave 4 of 5, हम्म ending 5. Volume कम हम्म होगा, value कम होगा, everything comes back into place, no? The minute you look at it that way. Assuming that the market is always right. Rather than saying ये नहीं है इसलिए ये टॉप नहीं हो सकता, let's हम्म give the market one benefit of doubt. Hey, market is right. So what is it that could make sense here? बट I निफ्टी 5 ब्रॉड टोटल मार्केट वॉल्यूम अगर मैं लूंगा ना, जिसमें मिड कैप का भी वॉल्यूम आ गया है, तो हम्म, ये रैली में वॉल्यूम हुआ है, ऐसा नहीं कि देयर इज नो वॉल्यूम इफ आई गो बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। हाँ हाँ वॉल्यूम हाँ तो कंफ्यूजन कहाँ है मालिक? Where is the issue? If you're हम्म looking, if you're looking, and why can't there be a blow off top with a lower volume in wave 5? Can definitely be there. No, why not? श्योर, लेट अस गेट Textbook, देयर। textbook. So my assumption has been only on that we are all at the top of a ED, and we're going to collapse completely. बट ईडी थ्रो ओवर का कुछ लिमिट तो होएगा ना। अरे बैंक निफ्टी थ्रो ओवर नहीं किया ना, सिर्फ निफ्टी किया है, एंड निफ्टी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज देखो तो इट इज जस्ट ए अबाउट भाई तुम इंग्लिश में बात 3.5%. करो ना यार, अच्छा हम हंसते हैं तो आप फोन पे बात कर लो एक दूसरे से, हम लोग को समझाओ ना यार। चलो सिंपल है। जो ये रैली अप्रैल 2021 से हुआ है, वहां से लेके आज तक का ये कंप्लीट पैटर्न मानते हैं फ्रॉम लेट वेव। एक मेरा एक व्यू है, रोहित भाई का व्यू अलग है कि मैं दोनों। समझाऊं, ये जो लाइन एक इसका ये जो एंडिंग बोल रही है क्या है? अक्टूबर का टॉप, अक्टूबर 2021 का टॉप 18,600, फिर करेक्ट। दिसंबर 2022 का टॉप 18,800, दोनों का लाइन हम खींचेंगे, वो लाइन करीब 19,040 का था। तो ये हाँ 19,040 पे रुकेगा नहीं रुकेगा, और अगर निकल भी जाता है, इज इट अ फॉल्स ब्रेकआउट, इज व्हाट शरद जी वी आर ट्राइंग टू आर्ग्यू विथ ईच अदर इन टेक्निकल लैंग्वेज, की ये 19,040 के ऊपर सच है कि झूठ है?
और ये किस हद तक हम लोग उसको सच बोलेंगे और किस हद तक झूठ बोलेंगे, दैट इज द सिंपल क्वेश्चन. And another, हाँ I disagree with you on one thing. Means it is my belief. Market most of the time is wrong. It bloody does. ओके ओके Most of the time it is wrong. ओके So it is always better to be a contrarian in Indian market. हाँ तो मैं तो कंट्रेरियन ही चल रहा हूँ मालिक. अरे तेरी मेरी बात सुनेगा अभी यार, गाली हाँ नहीं बोल सकते इधर. बोलो बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं, अपन कोई बुरा नहीं मानते, कुछ भी नहीं गाली नहीं, दे अरे पण बोल नहीं सकते है ना ऐसा. खुद तो डिस्टेंस ही रखेगा ना. अब 65 साल का है साला बुड्ढा. अब मैं भी आसपास ही हूँ, ज्यादा दूर नहीं. Okay. So So now my you view is, just a second, Sharad, let me just put it. See, Nifty has been making all-time highs and closing down every time, both the times. The 19500 523 लगाया, उस दिन भी 150 पॉइंट नीचे से लगाया, आज भी हाई लगाया. I thought it will. I was hoping that ये breakout जाए. Even though my view is bearish, deep in my heart, if you ask me, I don't want Nifty to break. I want Nifty to go up and prove me wrong. क्योंकि अगर यहां से चल गया और रोहित भाई सच हो गए, तो भाई साहब दुख 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 वाले आंसू जो हमारे भी निकलते निकलेंगे ना, वो भी बंद हो जाएंगे. सो यू डोंट नो द फियर दैट आई हैव ऑन द अदर एंड. अगर मैं करेक्ट निकल गया तो बहुत सीवियर प्रॉब्लम हो रहा है. So which is why I am skeptical also, but at the same time I am unable to let go of my theory. And there is a perfect timing happening for the last. There is a confluence of many dates here. So what will happen, in my view, is max you can pull it up till 17th, और एक दो दिन खींच लोगे फ्राइडे एंड मंडे. उसके बाद में 17 तारीख के बाद में इसको ऊपर रखना बहुत मुश्किल होगा. एंड इट इज गोइंग टू कम इन लाइक अ रॉक ऑफ अ क्लिफ. That is my view, and it will continue all the way till January. This see, time, and as far as I am concerned, my track record is very good. All the time sell sell sell. तो कभी तो ठीक होता ही है ना. तुम लोग ऊपर नीचे करते हैं, अपना एक साइड खाली सेल. मेरा भारत महान, बाकी सब बेईमान. Yes, now we take somebody. Yes, who is it? आनंद भाई बोलो. भाई मेरा सर आनंद सर से एक सवाल है. सर निफ्टी वीकली चार्ट्स पे 200 आपको लगता है टेस्ट करेगा इस साल या नेक्स्ट ईयर के 6 मंथ्स के टाइम फ्रेम में? ये क्या है 200? moving average चल रहा है. हाँ पण कौन सा किधर आता है? भाई अगर अगर मेरे को जो दिख रहा है वो होगा, तो 200 will not hold any value. You will go straight through all of them like knife to butter. नहीं नहीं, लेकिन 200 किधर आता है वो बताओ ना मेरे को. अरे 200 सर वो किधर 200 देखते हैं सर, आप नहीं देखते ना इसलिए वो तो वैसे. सर नहीं नीचे नहीं, कहाँ पे पण देखते हो आप? व्हाट इज द वो लेवल? लेवल पूछ रहे हैं वो. अच्छा लेवल, ओके ओके, लेवल इज 15,000. अभी निफ्टी में स्पॉट में वीकली चार्ट्स में 200 एसएमए का लेवल 15,000 है, राउंड राउंड फिगर. तुम लोग तो मैं शरद, तो मैं 2019 आनंद जी से वही का पूछा था कि याद आपको नहीं है मतलब तुमको. नीचे कहाँ और नीचे कितना दिखता है अगर पूछो आया मत. तो? आपको नहीं देखना है, पहले देखो 18,600 आता है क्या, उसके बाद में बात करते हैं. 18,600, अच्छा ओके ठीक है सर. 18,600 के बाद में बात करते हैं, देखते हैं कैसा जाता है 18,600 तक. ठीक है सर, ठीक है. Yes, please. Who's next? Anybody? Unmute and शरद जी आपका भी कोई लेवल है नीचे का? मतलब आप ये वाला टेक्निकल नहीं है आपका, जो अपना अलग से कोई लेवल है क्या निफ्टी में? नहीं 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 नहीं, कोई सर बता लेवल दो, सर बता तो नहीं आप. नहीं. बताने का क्या है, पानी पानी हो जाएगा सब. कंगाल हो जाएंगे. सर किधर एवरीबडी से विल शुरू बी होगा? बैंकक्रप्ट. इतना बुरा लगता है बिकॉज आई हैव नोटिस वन थिंग. हाँ जी. एवरीबडी इज अ फंड मैनेजर, एवरीबडी इज इन्वेस्टेड. सबको सब कुछ मालूम है. ये ऐसा तो फिर कौन लेगा एक दूसरे से? इज गोइंग टू फॉल वेरी बैडली. I ओके. don't know what is the reason, but it will. Looking at the market behavior in the last in this week and what happened last week,
पहले तो फर्स्ट थिंग दैट एनी बुल शुड लुक एट इज लेट निफ्टी क्लोज अबाउट 19550 फर्स्ट. 500 के ऊपर, हाँ, लेट निफ्टी क्लोज अबाउट 550, देन वी विल टॉक. जल्दी क्या है? अरे भाई तेरा नाम क्या है भाई? सर अरविंदर. आप लॉन्ग हो या शॉर्ट हो? नहीं सर, मैं तो अभी कोई व्यू पे नहीं हूँ. मैं तो सिर्फ आनंद जी को काफी टाइम से सुन रहा हूँ, 6 मंथ से पहले अच्छा, हो गए. मतलब उनका व्यू खाली उंगली मजा आता है. करने का है? नहीं 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 सर, ऐसा नहीं नहीं है. नहीं, आप, मतलब कि गेम मैं में स्टेक आनंद, नहीं है, ऐसे ही बातचीत करने का है? नहीं 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 ऐसा नहीं है. मैं आनंद जी को 6 मंथ से ज्यादा से फॉलो कर रहा हूँ. उनकी अरे स्पेसेस भाई, होती फॉलो फॉलो करता है, लेकिन गेम में स्टेक है क्या तेरा कोई? है. सर मेरा सिर्फ जो है वो इक्विटी के जो स्टॉक्स हैं उनमें स्टेक है. लेकिन अभी निफ्टी जैसे तो मार्च रहने देना, 23 से काय को मगज वीकली मारी चार्ट करता है? पे एक भी प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया, और ऐसा बहुत रेयर हो रहा है, रेयर रेयर होता है. इसलिए मैं उनसे थोड़ा पूछ रहा था उनका वीकली चार्ट्स पे क्या व्यू है, क्योंकि मार्च अ, 23 के बाद एक भी वीकली क्लोज प्रीवियस लो के नीचे नहीं आया, प्रीवियस वीक के लो के नीचे. ऐसा बहुत रेयर देखा है, मतलब कभी देखा नहीं पहले चार्ट्स में, तो इसलिए. which is basically what we call a Dow theory pattern. Dow theory being bullish, you don't have a lower low, lower high pattern. हाँ. So unless you get a trend reversal, why would you want to fight it? नो नो, नॉट टू फाइट, जस्ट एक ये होता he है is कि हाँ only inquiring, he is testing our हाँ. knowledge. अरे नहीं सर, ऐसा नहीं है. नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं है. But ठीक है सर. what is your reason of choosing the 200 is 200 week moving average? No, normally in equity also I look at weekly charts. तो मैंने इसलिए स्पेसिफिकली सिर्फ वीकली चार्ट्स पे ही आपसे व्यू पूछा था उनका, आनंद जी का. क्योंकि वो थोड़ा सा उनका व्यू मेरे को काफी टाइम से जब मैं सुन रहा था, वो थोड़ा जो उनका गाइडलाइंस रहता है वो सही रहता है. इसलिए मैं उनसे थोड़ा पूछ रहा था अपडेट के लिए कि जो निफ्टी में उनका क्या व्यू है, आपको उनको क्या लग रहा है एज पर इज. बदनाम मत करो मेरे को ऐसा. व्हेन आई एम रॉन्ग, आई एम वेरी बैडली रॉन्ग. सो सर No, हेयर no, but no, I wanted to understand क्योंकि वीकली रॉन्ग. 200 है, जब वीकली 200 वीक जब टूटता है तो बहुत लंबे से टूटता है, उसके ऊपर आप उसका टारगेट लेके आप बच नहीं पाओगे, क्योंकि पिछले दो बेयर मार्केट्स में इट ब्रोक बाय मार्जिन ऑफ 20% मार्केट वहां से 10% 15% और गिरता है. तो भाई, भाई एक बात बोलूं, मेरे एक्सपीरियंस से. हाँ जी. When it trains, and when it pours, it bloody pours like mad. जो अभी नॉर्थ में हो रहा है ना, वैसा ही होएगा. बम्बू फिनितो. ओके सर. वो तुम्हारा मोबाइल नंबर चेंज कर देगा, ब्रोकर से बात नहीं करेगा, यही होएगा. और एक एक बात, एक एडवाइस देता हूँ, ये वीकली 200 ट्रेडिंग मत करो, इन्वेस्ट करो. स्टॉक मार्केट इज फॉर इन्वेस्टिंग. यस यस, ट्रू. डोंट प्ले द मार्केट. I can tell you your end result. You will be in loss. तुम नहीं कितना आपने, भी होशियार हो. हाँ, नहीं आई एम नॉट हियर टू डिस्कस लॉस और प्रॉफिट. मैं सिर्फ एक व्यू लेने आया था No, उनका, no, I और am वो trying to चाहिए. tell you. आप लोग सीनियर्स हो Hello, तो दैट इज, hello, आई रिस्पेक्ट यू. hello. I am trying to tell you that speculation is bad. राइट राइट, समझा? दैट इज ट्रू, दैट इज ऑफ कोर्स, दैट इज ट्रू. no, Sharad bhai, what I was pointing out is कि the marker possibly for a long term this marker is wrong. मतलब ये मार्कर से जब विप्सो होते हैं तो फिर संभल नहीं पाएंगे. मतलब 15,000 के वीकली पे क्या करना चाहते हैं? He wants to buy or what? That was I was trying to इन्वेस्टिंग understand. पर्पस ओनली आई एम आस्किंग. एक्चुअली एक बारी मुझे प्रीवियस पेसेस में शरद जी ने मुझे दो तीन स्टॉक्स भी बताए थे, जैसे आईडी से. कौन खरीदता है यार मैं 200 वीक मूविंग एवरेज पे? वही तो I यार was trying to understand. कुछ भी अरे उसने पूछ लिया, छोड़ो ना यार. लेट्स टॉक समथिंग बेटर. रोहित इज हियर, यू आर हियर, आई एम हियर, देयर आर अदर पीपल. लेट्स टॉक समथिंग मोर सेंसिबल. नोबडी बाइस हियर. ये अभी और बोलिए भाई, कोई भी अनम्यूट करके बोलिएगा. सर ये टाटा मोटर्स का कितना टारगेट लग रहा है आपको? और कौन बोल रहा है? हेलो. हाँ जी, टाटा मोटर्स का कितना लग रहा है सर टारगेट? और कितने टाइम में वो बताना पहले. टाइमिंग इज आल्सो इम्पोर्टेंट. नेक्स्ट 6 मंथ्स. मेरा टारगेट 400 का है भाई. 400 कल ही बेचता हूँ फिर तो. ओके, थैंक यू. मेरा टारगेट एडवाइस नहीं है, मेरा टारगेट है.
You can take your own call, consult your broker before you take any such decisions. और इससे रिलायंस Please don't डीमर्जर से ask कुछ such questions. क्या इम्पैक्ट पड़ेगा मार्केट पे, कुछ बता सकते हैं? क्या क्या क्या? रिलायंस डीमर्जर से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? Positive. पॉजिटिव। ठीक। I think if stock specific आप मत पूछिएगा यार. ओके। ये ओवरऑल जो डिसइन्वेस्टमेंट चल रहा है, गवर्नमेंट बोलता है डिसइन्वेस्टमेंट करना है, लैंड बेचना है, तो उसके लिए पीएसयू का वो पूरा बास्केट अच्छा है लेने के लिए कि नहीं अच्छा? इक्वल बोला. हेलो. हाँ बोलिए सर जी। हाँ क्या पूछना है? मैं बोल रहा था कि पीओसी जो बोलते हैं ना कि पीओसी का डिसइन्वेस्टमेंट करना है, गवर्नमेंट को लैंड बैंक बेचना है, तो ये पीएसयू बास्केट अच्छा है, वो लैंड वाला पूरा जो लैंड जिसके पास ज़्यादा है वो अच्छा है वो लेने के लिए कि नहीं अच्छा है? ले अब और बहुत ही अच्छा है. और ज्यादा से ज्यादा क्या घर में पड़ा रहेगा, क्या फर्क पड़ता है? ज्यादा पैसा है आपके पास तो. इसलिए तो आपको पूछा ना, पैसा नहीं है लेने कमाने का है, इसलिए तो पूछा आपको। पैसा नहीं है तो तुम शेयर बाजार में नहीं कमा सकते. विदाउट मनी यू कैन नॉट अर्न इन स्टॉक मार्केट. जो है उसको इन्वेस्ट करके तो कमा सकते हैं ना। हाँ तो टाइमलाइन पे मैंने लिखा हुआ है, तुमको तुम्हारे हिसाब से करने का है तो हमको क्यों पूछते हैं? मैं पूछा बास्केट लेने जैसा है कि नहीं पीएसयू का? अरे पर जब हमको मालूम ही नहीं है, मैं दूसरों के जैसा नहीं हूँ कि कुछ भी बोल दूं. नहीं समझता है दोस्त मेरे को. मेरे को एमएनसी समझता है बस. Let me just elaborate. Let me just somebody is playing music, Mahindra. हाँ रोहित जी, उसको आवाज कर दे। रोहित जी, आपसे मेरा एक क्वेश्चन रिमूव है। हिम. अरे यार. हाँ चालू हो जाओ. हाँ कर दिया महेश भाई, बोलिए. हेलो. मनीष भाई बोलिए. नहीं वही आनंद भाई कुछ बोल रहे थे, लेट मी एक्सप्लेन यू इन अ बेटर वे। सो आनंद भाई कुछ बोल रहे थे। कुछ नहीं बोल रहा हूँ, बोलिए बोलिए. नहीं मेरा क्वेश्चन यही था कि ये जो पीएससी का जो लाइन चला है वो सही में इन्वेस्टेबल है कि नहीं है? I think it is. We can have different opinions, but I feel that ये जितना PSU, PSE list move हुआ है, it has all moved from a point of very very low value, जाके dividend yields and price earnings were the lowest in the basket. Now the part to figure out is when does value transition into growth, and that happens when the economy keeps growing year after year after year, because these are very large companies, they are very large businesses. And if you keep growing at an economic level, automatically any large organization which has a certain percentage of the economy's business is going to grow. And then that starts getting priced into its performance. So we are at that point where that transition could happen from value to growth, where the performance of PSEs, which some people might think is excessive, might end up, simply continuing to a different trajectory. Because if you look at the sector chart, PSE sector chart, it has broken out of a 7 to 8 year consolidation. एक ही रेंज में फंसा हुआ था, अटका हुआ था सालों से, वो रेंज तोड़ के बाहर निकला है. सो दैट इज दिस इज अ मल्टी ईयर ब्रेकआउट विच technically I would not ignore, and is indicative of a completely new cycle for the sector that is going on. ओके मनीष भाई और कोई पूछना. बस वही था, और एक वो जो आपने तो बताया कि रिलायंस का डीमर्जर इज अ गुड, तो
वो पूरा बास्केट लेने जैसा है कि नहीं लेने जैसा है, लास्ट क्वेश्चन। अच्छा, मैं एक रीजनिंग बताता हूँ. आई थिंक लास्ट 2 times we discussed little bit. I spent less time on the global part, but some very interesting things have happened which I'll be writing about in my long short report also. And two of them, I think Anant, we also discussed last time. One was bond yields and second is the dollar. My sense, again, this week's dollar movement, the dollar index has broken all the lows of the last 6 months. Okay. So I continue to believe that the September 2022 top of the dollar index was the top 115 या जहाँ पे भी बना था. That is going to remain a multi-year top. And whenever you are in a major dollar bear market, money is moving typically out of or stays less invested in US assets and more into emerging markets, commodities, and all these other trades. Exactly what happened between 2003 and 2008. So the situation is similar. What people are scared of is that whether that will result in a rebound of inflation somewhere in 2024, which is still 6 months away. अब उस 6 महीने आगे के डर को लेके मैं बैठ जाऊं तो आज मैं कुछ कर ही नहीं सकता. So when that happens, we will see. But as of now, as of today, the fact is we are in a environment where dollar is falling and most commodities are at the bottom. It's not like aluminum is at its all-time high. Aluminum has retraced 80% of its gains. Copper has retraced 61% of its gains. Oil has retraced 61% of its gains. All these are at 61% or more retracements. That is not what starts an inflation cycle. So there's a long way to go before we get to a point where people get scared. In the meantime, the secondary effect, which I was waiting for a long time, and we are seeing now some of that possibly in this week also, is bond yields coming down because the fear was so high about rates going up, and the Fed is saying they may raise it twice again. Interest rates are falling now very hard in the US, और इंडिया का भी bond yield अभी last 4 दिन से गिर रहा है. So I am more interested in India. And I think bond yields in India have already confirmed a downtrend. US में confirm नहीं हो रहा था. In India, similarly, USD INR is on the verge of, I think, below 81.76. It will confirm a downtrend, whereas the dollar index or the British pound and all these other currencies have already confirmed strength against the dollar. So broadly, why do we look at these two only primary global factors? बाकी सब भूल जाओ. ये दोनों अगर फेवर में है ना, तो मैं आँख बंद करके तेजी के साइड पे बैठा रहूँगा, क्योंकि that means liquidity is flowing in. Okay, market may appear illogical, but liquidity can keep markets appearing illogical for longer than we usually imagine. And that is, I think, the scenario and environment that we are in right now. So I think that is sort of my conclusion, why I should not look at the other side for the time being. चलिए. मोरल ऑफ द स्टोरी. हेलो. बोल बोल बोल. मतलब 200-300 पॉइंट से ज्यादा करेक्शन मार्केट में दिख नहीं रहा है. मतलब लंबी तेजी ही है, और जिस हिसाब से डॉलर इंडेक्स का फॉल हुआ है और सीआरबी इंडेक्स भी जिस हिसाब से आज मूव कर रहा है, तो इंडियन मार्केट तो बुलिश दिख ही रहा है. सही बात है आपकी कि वही सब पैसा इमर्जिंग मार्केट में इन्वेस्ट होना चाहिए. तो 20,200 से पहले तो मंदी मंदी जैसा कुछ देख नहीं रहा है. टेक्निकल करेक्शन हो सकता है 200-300 पॉइंट, अदरवाइज मंदी नहीं बोल सकते. 500,000 पॉइंट या नियर टर्म में अगर देखने जाएंगे तो लग रहा है कि 18,600 जो लास्ट लो लगाया है, 18,642 शायद, वो भी अब ब्रेक नहीं करता हुआ दिख रहा है मार्केट. So Anant, I'll put my upward level where I think all negative views get cancelled out, and that is above 19,900, because that is 138% of the entire fall. So my cutoff is that after that, then there is no case.
Oh, you're looking at 19938. I am looking at 19700, 19742 actually. Beyond Okay, 19742, I will also throw in the towel. right. Not very far. तो 200, 300, 400 पॉइंट ठीक है, चलता है. Because of all we are looking. See, my point was, if even if this is a B, now assuming rather than just look at it as a 1-2-1-2 also, let assume this is a B. So if this is a B, we'll anyway get a extended C. ठीक है, और हाँ, कुछ भाई बोलना है आपको? और क्या बोलना है? नहीं, आपको नहीं, ये नारायण, क्या नारायण वैल्यू फंड्स. नहीं सर, हो गया, मेरा हो गया, डिस्कशन कर लिया वो मैंने. थैंक यू. हाँ हाँ सर, गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. ये मेरे पास कुछ स्टॉक पड़े हुए हैं जो स्मॉल कैप के स्टॉक हैं. धानी है, एस बैंक है, आइडिया है, छोटा छोटा है. तो हाँ, तो वो छोटा छोटे का बात नहीं करता है. सर, क्योंकि हमको ही नहीं मालूम है. अब भाई यहाँ पे 5,000 स्टॉक है. हाउ डू यू एक्सपेक्ट अस टू नो ईच एंड एवरी वन? आई नो ओनली 30 स्टॉक्स बस. ये और दूसरा पॉइंट है सर, एक चीज मैं वॉच कर रहा हूँ, जो मार्केट में स्टील का ट्रेंड है, वो काफी हाई है. इंडिया इज वन ऑफ द लीडिंग आफ्टर चाइना इन द प्रोडक्शन ऑफ स्टील. सो माय व्यू रिगार्डिंग द share is Tata Steel, JSW, and Electro Steel like shares is very positive. They will be benefited in the future for the long term, for the half an year. And third point is there is a IPO for the bank. It's Utkarsh Ispan Finance Bank from the Varanasi. It is will do very good in the incoming months. Is my personal views. थैंक यू. Thank you. और कुछ? चलो, who's next? Hello, कौन? good evening. शुभम, go on. हाँ Hello. जी सर, मेरे को बस ये पूछना था कि हेलो, एम आई ऑडिबल? जस्ट अ मोमेंट. हाँ, ओके बोलिए श्योर. आप. हाँ हाँ, जी सर, बोलिए. हाँ जी सर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि एक्चुअली बस आप लोगों का व्यू जानना चाह रहा था कि ये आईटी सेक्टर का अभी क्या व्यू लग रहा है. मतलब 1-2 साल में ऐसा कंसोलिडेशन ही रहेगा या थोड़ा सा अपवर्ड ट्रेंड रहेगा? ऐसा कैसा लग रहा है आपको आईटी सेक्टर? ये आधा भी हो सकता है और डबल भी हो सकता है. ये सर्वेंद्र भाई बोलेंगे आईटी सेक्टर के बारे में. सर्वेंद्र, यू वांट टू टेक दिस? नो, छोड़ो. नहीं देखिए, नहीं आईटी में अगर नहीं मेरे से पूछ रहे हैं तो आई थिंक आईटी में भी बहुत जगह नीचे में बाकी है अभी. इट्स करेंटली जो रेंज है उसके अपर एंड पे है, बट आई थिंक स्टिल एक बार नीचे का जो लो है वो टूटेगा निफ्टी आईटी का. दैट्स माय टेक. आज मॉर्निंग में पब्लिक बहुत फंसा था टीसीएस में. एंड में क्या क्लोज हुआ देखा भी नहीं है मैंने. बट टीसीएस वाज अप अबाउट 100 रुपीस इन द मॉर्निंग. So that's one index which is very clear a 5 wave down. So उसमें जो भी bounce आएगा, see I'm saying the bounce can go slightly higher also because पिछला bounce 31,600 तक भी गया था. तो right now we are at 29,628. So maybe some 1,000 odd points, 800,000 points more, but it's only a trading bounce because Nifty IT is such a clear 5 wave down that the next leg I would say that we'll break the double bottom at 26,000. 26,000 क्या था? 26,200 odd whatever. 26,200 के आसपास, या 26,189, 26,184, या. So 26,180 breaks, I think IT is gone. नहीं, आपका आवाज नहीं आ रहा है सर्वेंद्र. अभी आ रहा है सर? अभी आ रहा है? नहीं. We are able to hear you, sir. Praveen sir. I can hear you. So thought यही है कि 31,600 के ऊपर है नहीं IT और अभी 29,600 चल रहा है, and eventually it is going to break 26,200, 26,180 और उसको तोड़ने के बाद I think it goes fairly lower
somewhere in the region of 21, 22K. So I think IT में तो बहुत downsides पर बाकी मेरे है. को एक बात भाई साहब समझ में नहीं आता है, आईटी का क्यों पूछते हो? निवेश किया हुआ है या करना है आपको? इधर निवेश किया भी हुआ है और करना भी है बस ऐसा कुछ नहीं है कि इस व्यू पे जाके मेरे को पोजीशन बनानी है, बट मैं थोड़ा इन्वेस्टेड हूँ और थोड़ा और पोजीशन बनाने की सोच रहा था, तो इस वजह से मैं पूछ रहा था. अरे भाई साहब, इसमें आपका पैसा नहीं बनेगा, ज्यादा से ज्यादा 7-8% पर ईयर भी नहीं छूटेगा। आप अच्छा अच्छा शेयर लो और सेक्टर में मत घुसो, बहुत पैसा मिलेगा इंडिया में, लेकिन ये सब सेक्टरों में नहीं मिलेगा। बैंकिंग हुआ, ऑटोमोबाइल हुआ, फिर ये टेक्नोलॉजी हुआ, कुछ नहीं मिलने वाला आपको, बाबा जी का ठंगा। आई थिंक इनके लिए मैं समराइज कर देता हूँ. करंट सेटअप में आई थिंक निफ्टी आईटी 31,500 600 से बहुत ज्यादा ऊपर नहीं है, और नीचे में 21,800 22,000 के भी लेवल आएंगे. सो यू आर स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड व्हाट हैज टू बी डन. दैट्स माय व्यू. आप इसको देखो अपने हिसाब से, बट दैट्स माय व्यू ऑन द आईटी स्पेस. ओके अशुर। एक और क्वेश्चन है, अगर मैं पूछ सकता हूँ तो. हाँ पूछिए पूछिए। बस एक और सेक्टर है, केमिकल सेक्टर, थोड़ा एडमिन चल रहा है इसमें, तो नहीं, ये पकड़ लेना पकड़ लेना केमिकल सेक्टर 1/10 हो गए ना, तब पकड़ लेना, उसके पहले पकड़ना मत। आपको ओके. मालूम है 2019 में क्या सब भाव थे? हाँ, मतलब काफी रैली हुआ है अभी 3-4 साल में, इट्स बट वीक, अभी जो इट्स वीक शुभम, इट इज वीक, बस छोड़ दो उसको, इट्स एक्सट्रीमली एक्सेसिवली वीक. ओके, राहुल. Very good evening, sir. Especially Sharad sir and Savinder sir. Very good evening, sir. थैंक्स अ लॉट सर. आपने सर आज मेरा कन्वर्सेशन सविंदर सर से हुआ, सर ने मुझे मेरी आंखें खोल दी सर. बाय गॉड, मतलब मैं काफी इल्यूजन में था. आज का जो डेटा एनालिसिस किया है सर इसमें जो एक्सपायरी में, टू बी फ्रैंक सर, अभी निफ्टी तो बिल्कुल रेंज में दिख रहा है सर. आज की जो डाउनफॉल हुआ वो भी रेंज में ही है. तो होप्स हो कि सर ये और नीचे थोड़ा सा रिट्रेस हो, जिसमें कुछ और अपॉर्चुनिटी बन पाए सर. आपका क्या राय है सर इसमें? हो सकता है नीचे आएगा थोड़ा बहुत अरे सर. बैंक निफ्टी 52% तो एचडीएफसी बैंक है, और आईसीआईसीआई और एक्सिस, वो क्या खेलता है, काय को खेलता है? पैसे का बर्बादी करने का है क्या तुम्हारे को? क्यों खेलते हो ये सब बैंक निफ्टी विफ्टी? स्टॉक ले ना अच्छा वाला कोई, तो आपका वो फ्यूचर भी बन जाएगा और बच्चे लोग पैसे वाले बन जाएंगे। इधर तो आपका ही फ्यूचर बिगड़ जाएगा ये सब। राइट सर. गैल ले रखा है सर, गैल, गैल इंडिया. एक कौन बोला? हेलो, कौन बोला? राहुल? सर यस सर, यस सर, यस सर, स्टॉक ही ले रखे हैं सर. कोई नहीं. जाने दो, अभी कुछ बोलने का नहीं, घेर लिया है ये भगवान। चलिए, थैंक यू सो मच. Why are you wasting your money and time and your family's wealth यार? इतने सारे अच्छे अच्छे शेयर है, वो आपको सस्ता ही लेना है। मैं आपको एक शेयर बोलता हूँ, आपने एसकेएफ इंडिया, आप 5200 का भाव है, आप पकड़ लो, बहुत सस्ता है, बहुत सस्ता है, गेल से बहुत सस्ता है, और 2-3 साल में 20,000 हो जाएगा। ऐसा ले ना कुछ, काम का गेल बेल है, दिमाग फिराता है यार। एक एक गवर्नमेंट का शेयर वो कोई इन्वेस्टमेंट का चीज है क्या? मत करो ये सब, आपका पैसा अल्टीमेटली डूब जाएगा। चलिए, हुज नेक्स्ट? मेरी आवाज आ रही है क्या? मैं महेंद्र आ बोल रहा रहे हूँ. हैं। हाँ, मेरा क्वेश्चन है रोहित भाई से है. मैं इंडेक्स या बैंक निफ्टी किसी में फ्यूचर में ना काम करता हूँ, ना इंडेक्स में काम करता हूँ. मैं प्योरली कैश के स्टॉक इन्वेस्ट करता हूँ, वो भी स्मॉल कैप में.
मुझे जानना है रोहित भाई से कि बीएसई स्मॉल कैप इंडेक्स के बारे में आपका क्या व्यू है? हाँ, ये सवाल बराबर है. Very good. Instead of asking for particular stocks, you have asked for index. Very good. रोहित भाई बताइए इनको. So if we, what I do for mid cap, small cap, and I look at the performance relative to Nifty. एक फेज होता है 2 साल 3 साल का जब मिड कैप स्मॉल कैप आउट परफॉर्म करता है, फिर 2 साल का फेज आता है जहाँ पे वो अंडर परफॉर्म करता है. So 2021-22 outperformance, 22 there was underperformance till now, and now from 23 onwards again we are seeing outperformance. So your outperformance cycle lasts for a good 2 years or 3 years. And if I look at this performance cycle over 10 years, then we are only halfway through the cycle. So in terms of length, not time. Okay, so there is still room to go. Even if we look at the current moves, I think mid cap was the first to surpass all the highs to an all-time high before even the Nifty did. That's how it has been leading the way, and small caps are also following. So my sense is this rally is not over. Surely that doesn't mean there will not be corrections. At some point of time, even mid and small caps will give a correction consolidation in this market. Maybe August, September, may somewhere that will happen. But that again may not be the end of it. It will just be a pause in a longer upward trend. That is how I am thinking about it right now. मैं जो काम करता हूँ स्मॉल कैप, बेसिकली मैं बीएसई स्मॉल कैप फॉलो करता हूँ, और रिसेंटली ने जो ब्रेकआउट दिया है, लाइफ हाई ब्रेकआउट देने के बाद, मतलब जो अगर रेंज टारगेट भी लेते हैं तो भी जो मेरा मानना है कि 39,000 तक का तो उसकी रेंज दिख रही है मिनिमम टारगेट. अभी जस्ट मैं प्ले कर रहा हूँ रेंज के हिसाब से, चार्ट पैटर्न के हिसाब से प्ले करता हूँ. और मेरा पोर्टफोलियो भी है, कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो रखता हूँ. 15 स्टॉक रखता हूँ, वो भी स्मॉल कैप और मिड कैप रेंज में ही. और लास्ट 3 मंथ का मतलब मेजरली आउट परफॉर्मेंस किया है. प्योरली मैं रिलेटिव स्ट्रेंथ पे ही काम करता हूँ. जो भी मतलब स्टॉक मेरा निफ्टी से आउट परफॉर्मेंस कर रहा है उसी में मेरी पोजीशन रहती है. अगर अंडर परफॉर्मेंस चालू होता है तो मैं निकाल देता हूँ. तो लास्ट 3 मंथ में ऑलमोस्ट मोर देन 50% मेरा पोर्टफोलियो ग्रो हुआ है. बट जो स्मॉल कैप बीएसई स्मॉल कैप इंडेक्स ने ब्रेकआउट दिया, अभी मेरे को लॉन्ग वे 5-6 हज़ार के मूव तो अभी भी दिख रहा है. तो इसलिए जस्ट मैं आपसे जानना चाह रहा था एग्जैक्ट कि मतलब कितना लंबा पॉसिबिलिटी है, क्या 39,000 बीएसई स्मॉल कैप टच कर सकता है? वेरी मच पॉसिबल. और जो स्ट्रैटेजी आपने बताई है ना, दैट इज कंप्लीटली परफेक्ट फॉर दिस टाइप ऑफ मार्केट. कि यू चेज परफॉर्मेंस, वेयर देयर इज वीकनेस उसको छोड़ दो. जैसे सम टाइम बैक वी वर टॉकिंग ऑफ केमिकल स्टॉक्स, very weak, not going up in any situation. So that is to be avoided. And where the mid and small caps which are showing strength, they're not going below weekly monthly averages. Those are the ones that you stay with. It's a simple and no brainer approach. ओके. मैं प्योरली प्राइस एक्शन और वॉल्यूम एक्शन पे ही काम करता हूँ. ना मैं मूविंग एवरेज यूज करता हूँ, नथिंग एल्स. सिंपल रिलेटिव स्ट्रेंथ स्ट्रेटेजी एंड चार्ट पैटर्न. Thank you. थैंक यू सर. थैंक यू रोहित. Hi Sharad ji, Anand ji, Rohit ji, and all the speakers. अगर हम एज्यूम करें कि कोई फ्रेश एंटर करना चाहता है मार्केट में, कहाँ पे वैल्यू है अभी? मेरे हिसाब से जितने भी महंगे शेयर्स है ना, हाई प्राइस शेयर्स, वो लो आप. अच्छा. उसमें ही सिक्योरिटी है आपका, उसमें ही आपका ओके. पैसा बनेगा. ये सब ओके. खतरा पट्टी में जाना मत. ओके सर. आप अच्छा कंपनी लो, सुख पाओगे. यू विल बी हैप्पी इन लाइफ. ओके, थैंक यू सर. Your view, Rohit and Sarvendra? My view, my favorite is metals. Not moving for some time. Metal stocks have been lagging behind.
But this Okay. week's move in the dollar or tonight's moves in copper and aluminium prices are a signal that the metal rally is about to start. So there is value. They are not Okay. expensive. They have remained down. They have a lot to catch up. Okay. Okay. Thanks. Survey. सी हेलो आई थिंक इन मेरे लिए तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड्स बचे नहीं है मार्केट में कोई बहुत ज्यादा एग्रेसिव सो ऑन द लॉन्ग साइड आई वुड अवॉइड सो इस समय तो आपको थोड़ा कैश पे बैठना चाहिए मेरे हिसाब से टिल मोर क्लैरिटी इमर्जेस markets have got this bad habit of running towards round numbers so nifty might run up another 400 points 20,000 भी करना है तो करेगा तालियां बजवाने के लिए खाली not that it's my preferred view I think 19600 19650 और आज हम ऑलमोस्ट 19570 तो करके आ गए सो 30 पॉइंट के लिए और 30-40 पॉइंट के लिए मुझे कोई बहुत ज्यादा इंक्रीमेंटल बुलिश रहने की जरूरत नहीं है सो ब्रॉडली आई थिंक लॉन्ग साइड के रिस्क रिवॉर्ड नहीं है यू कैन सिट ऑन सम कैश that's my view till more clarity emerges for some reason if we break past 20,000 19,900 20,000 then yes we might look at 3-6 months of bullishness left in the markets but जब तक वो नहीं होता I think it's too risky to start fresh अगर पहले से कुछ पड़ा है तो ठीक है but Correct. आपने fresh पूछा वो मेरे हिसाब से आपको वेट करना चाहिए to allocate 30% of your fresh money you should wait for levels between 15,200 to 16,800 वो जो रेंज है जो हमने अभी लो अच्छा. किया था पिछला 16,800 का उसके पहले 15,200 आई थिंक इन दो लोज के आसपास जब पहुंचता है या उनके बीच में पहुंचता है तब अपना नए पैसे का 30% आप डाल सकते हो एंड लेटर ऑन वंस वी कॉल अ बॉटम और समथिंग देन पॉसिबली यू कैन पुट द रिमेनिंग पार्ट बट फिलहाल मेरे हिसाब से तो पैसे बाजार में नहीं डालने चाहिए लेना है तो गोल्ड सिल्वर लो लेना है तो गोल्ड सिल्वर लो यहाँ से Also and these wanted are to my know. broad Yeah. opinions as a disclaimer okay so everybody Yeah. has Yeah. to Yeah. Yeah. do their own Yeah. Yeah. homework yeah no I have to give this disclaimer regularly Yes. this Yes. my lawyers told me so I have to Correct. always give this disclaimer yeah Yeah. Only children, will complain. We have to be mature enough. Correct. no boss in this Twitter world Correct. people Yeah. go and complain about some small shit also so Anant and everybody there they'll काम for का some बात shit they करो. can go and complain and the guy see in India the judicial system is like culprit till Yeah. proven you are culprit till proven otherwise so वो तो जाके एक Yeah. फुलझड़ी Yeah. छोड़ के आ जाएगा हम भागते रह जाएंगे इधर उधर No so issues. No issues. Thanks for sharing your opinion. And just wanted to know your experience, in during election times and अरे volatility भाई during साहब, those times. ओ भाई साहब, आप कुछ भी पूछे जा रहे हो, मतलब क्या है क्या? व्हाट नहीं, इलेक्शन? बस यही लास्ट है सर. ये इलेक्शन? इलेक्शन के शरद भाई रिलेटेड मैं आप एक लाइन शेयर में कीजिए अपना एक्सपीरियंस. जवाब दे देता हूँ शरद भाई एक लाइन में जवाब दे देता हूँ भाई एनालिस्ट है हम लोग पंडित नहीं है तो ये आप पंडित को पूछ लो बेजान दारू वालों को फोन करो वो बताएंगे आपको Good evening, Sharad हेलो Sarji. एनी Good व्यू evening, ऑन Samar श्री Sarji. सीमेंट हेलो श्री Hello, sir. सीमेंट पे इवनिंग कोई सर. व्यू है उसका गुड एमसीए का कुछ आया था Hello. अरे भाई एक जन बोलो ना, दो जन बोल रहे हैं. शरद सर जी, गुड इवनिंग. पहले तो थैंक यू सर एचडीएफसी बैंक के लिए. और सर दूसरा सर मेरा अभी आईटीआर रिफंड आने वाला है सर जी, 60,000. तो मैं एक ही शब्द पूछूंगा सर. सर गोदरेज प्रॉपर्टी कैसे रहेगा सर, क्योंकि अच्छा रहेगा, अच्छा रहेगा. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच. और सर पुनः और एक बार आपका धन्यवाद. और आज का थोड़ा सा हमने पैसा बना लिया. थैंक यू. ओके. हेलो श्री सीमेंट पे कोई व्यू है उसका कुछ प्रॉब्लम या एमसीए प्रॉब्लम चल रहा था बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. और 50 या 100 रुपया नीचा चला जाएगा. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग. सर स्नोफी इंडिया एंड ब्लैक बॉक्स लिमिटेड के बारे में पूछना था सर. ब्लैक बॉक्स क्या है? ये सर एक एमएनसी टाइप का कंपनी है. नहीं, मैं नाम नहीं सुना अभी तक, आज पहली बार सुन. कलड़ पता नहीं. सर स्नोफी इंडिया. सनोफी तो एकदम बढ़िया कंपनी है, क्या पूछने का. वो सर मैंने उसका 100 शेयर लिया है. हाँ तो रहने देना भाई, काय को बताता है दुनिया को, छीन लेगा सब लोग.
नहीं सर, कि सफर 10 साल के लिए अच्छा है ना सर? एकदम अच्छा है, थैंक यू सर, थैंक यू लेकिन उस वो बेच के एस्केप बेरिंग ले लो, एस्केप इंडिया ले लो, बहुत पैसा बनेगा आपका। सर। SKF इंडिया, ओके सर, थैंक यू। थैंक 10 साल का व्यू है तो पूछना ही नहीं है, सब अच्छा है। चलिए एवीएस बोलिए। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन है सर्वेंद्र जी से और रोहित जी से कि आपका यूएसडी जेपीवाई पे क्या है एग्जैक्टली? आई एम अ करेंसी ट्रेडर, बेसिकली आई ट्रेड करेंसी एंड गोल्ड, नो स्टॉक्स, एंड एयूडी यूएसडी, दो पे। थैंक यू। नहीं, एवीएस आप हमको अगर फॉलो करते हैं तो फिर आप तो देखते ही रहते हो, मतलब अगर फिर आप लगता है फिर आप ट्वीट्स रेगुलरली फॉलो नहीं करते। येन कैरी ट्रेड जब 144 से पलटा था तभी मैंने बोला था कि द ट्रेड इज बैक, इट विल हॉन्ट द मार्केट्स। तो अभी तो 144 वाला 138 हो गया है, मलाई तो निकल गई है, मतलब एक शॉर्ट टर्म ट्रेड में से तो मलाई निकल गई है। ठीक है, अगर आपको इफ यू वांट टू प्ले फॉर द लॉन्गर टारगेट्स, आई थिंक one leg of the trade is over. Now you have to break 137, 136.80 you have to break now. So एक trade तो over हो गया है. Once you break 136.80, I think we are headed towards back towards 125, 127. So आप yen में, yen is something that we track regularly. And my biggest concern right now, which nobody is looking at, is the yen carry trade. Yen जिस तरह से invert हो रहा है and the way it's gaining strength, it's not good. It's not good in the sense, usually it's not been good for the markets as a whole. So if yen starts strengthening, सब जगह पिटाई हो जाएगी गोल्ड सिल्वर छोड़ के, and to some ओके, extent maybe crude चल सकता है. Crude we have been bullish right from 67, so crude में भी हमारा टारगेट WTI में around 90 95 है. So अरे I think 50 हो जाएगा, क्या नॉनसेंस। हाँ सर ठीक है, हो जाएगा, अभी तो नहीं हो रहा ना, अभी तो पैसे बन रहे हैं, जब तक बन रहे हैं तब तक बनाते हैं, जब हो जाएगा तब देख लेंगे। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से खड़े हैं। अरे व्यू देने में क्या जाता है, सब लोग इधर व्यू ही लेते हैं येन ना। कैरी ट्रेड से आप सी, येन कैरी ट्रेड से ऐसी लग जाएगी, ऐसी लग सकती है बाजार की, जो अभी किसी को समझ में नहीं आएगा। पीपल हु हैव सीन इट नो इट। तो और 125 तो मेरा बड़ा कंजर्वेटिव टारगेट है, 25 27 किसी कारण से वो टूटा, देन तो बॉस हेल कैन ब्रेक लूज ग्लोबली। सो वी विल सी, इट्स ऑल एन इवॉल्विंग स्टोरी। पहला ट्रेड ओवर हो चुका है, तो अब यहाँ से कोई रिस्क रोड बचा नहीं है येन में। बाउंस आवे तो आप ठोक लेना दोबारा, या तो 136.80 टूटे तो दोबारा ठोक लेना क्लोजिंग बेसिस पे। हाँ, 136.80 हैज टू ब्रेक ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। And this ओके सर, again is a थैंक, broad, this again a broad opinion. Trade is yours. I have nothing to do यस with यस, your trade. Yeah. थैंक यू सर। A request to admin, you can just remove me as a speaker. Thank you. हम्म, हाँ भाई, कौन है दूसरा? रोहित, रोहित हेलो। गोयल या? हाँ हेलो सर। हम्म, एक्चुअली रोहित सर से क्वेश्चन था, लेकिन वो भी यहाँ नहीं दिख रहे। मुझे ये पूछना था मेटल्स पे, जैसे वो काफी बुलिश है, लेकिन चाइना में डिफ्लेशन और चाइना स्लो डाउन का काफी न्यूज चल रही है, तो कैन हाँ, दैट भाई है भाई पुट अ भाई स्पीड भाई ब्रेकर? भाई भाई, तेरे को स्टॉक मार्केट में क्या करने का है बता। हाँ नहीं, मेटल शेयर के बारे में ही पूछना था सर। नहीं नहीं, तेरे पास है क्या? हाँ हाँ है। तो रखो। ओके। और पैसा हिंडाल्को, टाटा देख, स्टील। हाँ। देखो, Shad bhai, I have a slightly different view on metals. I think this is the best sell. तो आप मेटल इंडेक्स इज द बेस्ट सेल राइट नाउ। मतलब अब मुझे तो ये लगता है कि यहाँ से 5% ऊपर नहीं है और 20% नीचे है। सो अकॉर्डिंगली आप ओके अपने हिसाब से देख लो, बट माई सेंस इज दैट मेटल इंडेक्स इज द बेस्ट शॉट फ्रॉम हेयर। एंड ओके 15 से सर। 20% इंडेक्स गिरेगा, बाकी स्टॉक्स आप अपने हिसाब से समझ लेना। Okay, yeah, true. Because even today, despite the dollar falling overnight, today there wasn't any rally as such. Only Hindalco was up, but other metal stocks uh, did not rally. So, I mean, that's what is confusing. अरे भाई, Uh, आप डॉक्टर के पास में जाता है, मेडिसिन देता है, वो उसका एनालिसिस करता है क्या तुम? नहीं सर। फिर इधर क्यों करता है एनालिसिस? ये तुमको कितना आता है, क्या नॉलेज है तुम्हारे पास? द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक डियर इज हम्म buy what you understand and which is हम्म very simple. हम्म And if राइट। you, and if you're
wanting to build a portfolio for just arguing and talking about it, हम्म। these are the perfect scripts. नहीं And नहीं if you सर want to, एक्चुअली। एक मिनट सुनना यार, I am not हाँ belittling you. If you हाँ हाँ। want to invest and earn real good money, there are हम्म so many scripts. हम्म। ये बुढ़ी औरत के साथ में क्या मतलब है? अब मेरे जैसे बुढ़े को पकड़ के क्या मतलब है? पकड़ना हम्म कोई फर्स्ट क्लास वेस्ट लाइफ ये सब एवरग्रीन शेयर्स, हम्म बट आई डोंट नो व्हाई पीपल डोंट बाय गुड शेयर्स. ये सब कचरा पट्टी है. हम्म। हम्म. राइट राइट। हाँ वही एक्चुअली इसलिए रोहित सर से क्वेश्चन था क्योंकि उनको मैं फॉलो करता हूँ काफी क्लोजली और लास्ट 3-4 वीक से वो मेटल्स पे काफी बुलिश थे तो उनसे ही इसलिए पूछना था मेटल्स रिगार्डिंग बट वो अभी शायद नहीं है यहाँ पे। ठीक है भाई, चलिए. ओके सर थैंक यू थैंक और सुन, तेरे को यू। एक बात बोल रहा हूँ. हम्म। ये टाटा स्टील है ना, जो हम्म 15 साल पहले भाव था ना, वही भाव है हम्म। अभी. छोड़ना यार, फालतू का शेयर क्यों पकड़ता है यार. ओके। हम्म. और बता, अब पोर्टफोलियो बट कितना. शरद भाई आपकी मेमोरी को दाद देनी पड़ेगी, वैसे मेमोरी की दाद देनी पड़ेगी. बैंग ऑन. टाटा स्टील उधर ही किधर ही है, बीएससी मेटल ही उधर है. बीएससी मेटल का 2008 का भाव था नहीं नहीं, 21,000 रुपया, ये आज क्या भी है, 21,000 रुपये, आज भी 21,000 रुपये ही है. आप यूएस मार्केट में जाएंगे ना हम्म और पूछेंगे मैं स्टील शेयर लिया है, वो हम्म ब्रोकर बोलेगा गेट आउट. तुम हम्म बोलेगा सीमेंट लिया है, मारेगा चप्पल उतार के. उधर टेक्नोलॉजी चलता है और हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग चलता है. इंडिया में भी हम्म बहुत सारा है हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग. हम्म। बोलो ना, काय को एक कूड़े में पड़े हो यार. આપણે how old are you? राइट। How old are you? हाँ सर 38। तो लेना अच्छा अच्छा शेयर है, ये निकल जाए सब कचरा पट्टी में से. ठीक है। ओके सर थैंक यू. थैंक यू। हाँ बोलो. हेलो। या. हाँ नमस्ते शरद सर। हाँ नमस्ते. सर मेरे को आपका व्यू हॉस्पिटैलिटी सेक्टर और हॉस्पिटल सेक्टर्स के बारे में जानना था सर, फॉर लॉन्ग टर्म। देख यार, मेरे को सेक्टर वेक्टर मालूम नहीं है. आई एम अ स्टॉक गाय, और मेरे को भाषण करने का भी नहीं आता है. मैं सबको एक ही शेयर बोलता हूँ, फोर्टिस अपने हेल्थ केयर. और ओके सर। 330 का भाव है. 3 साल में 2-3 हजार हो जाएगा. जयराम जी के. ओके सर थैंक यू सर। हम्म. ऐसे 4-5 और अच्छे शेयर बता दीजिए सर, जैसे एसकेएफ हो गया, फोर्टिस हो गया। क्यों बतावे, ऐसे मतलब आपके पूछने से नहीं बताऊंगा. ओ मेरा दिल आएगा तो मैं बोलूंगा. चलो, इंतजार रहेगा। नहीं, टाइमलाइन पे चले जाओ ना, सब लिखता हूँ मैं. चलो देखता हूँ सर। ओके. यस. Hello, या. am I देखो. audible? हाँ हाँ भाई, एकदम. Uh, बोलिए मैडम. शरद सर, आपसे एक चीज पूछनी है. हम्म. अगर मतलब मेरे को मार्केट का इतना नॉलेज नहीं है, बट मैं सैलरीड पर्सन ही हूँ, तो मुझे अगर इन्वेस्टमेंट करना है फॉर वेल्थ जनरेशन, हम्म. तो आप कहाँ गाइड करेंगे, कहाँ पे पैसा लगाना चाहिए? मतलब सेक्टर, स्टॉक, जैसे भी आपको सही लगे. नहीं नहीं, एज आई स्पोक अर्लियर, आई एम नॉट अ सेक्टर गाय, आई एम अ स्टॉक गाय. हाँ जी. वो जो स्टॉक सस्ता लगता है इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, वो ले लेने का.
सर कोई स्पेसिफिक ऐसे आप बताना चाहेंगे मे बी जस्ट टू हेल्प आउट, क्योंकि मुझे इतना आइडिया नहीं है स्टॉक मार्केट का। How much you want to invest? सर मे बी विद द स्टार्ट ऑफ 5 to 10 एंड देन मोर, जैसे अर्निंग होती जाएगी ऑफ कोर्स सैलरी आती रहेगी, देन आई कैन इन्वेस्ट मोर। तो उतने का तो अपने पार्टी कर लेते हैं बेन। No, jokes apart. My number is on the profile, WhatsApp number. ओके, You give me a ping, I will make a portfolio. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। Yeah, yeah. Yeah. गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग करेंद्र हाँ. सर। सर आप एक छोटा सा क्वेश्चन था, शॉपनर इंडिया और एआई इंजीनियरिंग के आपके व्यूज, और सरविंद सर आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन था कि विच इज दैट स्टॉक व्हिच यू नेवर सोल्ड फ्रॉम योर पोर्टफोलियो, प्लीज इफ यू कैन। हेलो शरद सर, हाँ. ब्लू डार्ट अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा क्या अभी लॉन्ग टर्म के लिए? ब्लू डार्ट जो एमएनसी है। अच्छा. हेलो। नहीं, आई थिंक शरद सर वो इसके पहले वाले स्पीकर का पहले आप क्वेश्चन ले लो। आई थिंक दीपक भाई आप जरा वेट कर लीजिए। आई थिंक इसके पहले जिनका था उनका क्वेश्चन नहीं लिया है अभी तक। एआई इंजीनियरिंग और शॉपनर इंडिया पे शरद सर से व्यू था, एंड सरविंद सर आपसे वही पोर्टफोलियो में आप द वन स्टॉक व्हिच यू नेवर सोल्ड। नहीं, पहले शरद सर बोल लें फिर मैं बोलता हूँ। नहीं मेरा तो थोड़ा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है। नहीं, एक क्या पूछ रहे हैं, मैं सुना नहीं भाई। एआई इंजीनियरिंग और शॉपनर इंडिया पे व्यू चाहिए था। शेफलर और कौन सा? एआई इंजीनियरिंग। एआई नहीं मालूम है। ओके, ऐसे शॉपनर इंडिया, टिमकन इंडिया। काय को पूछता है तुम? अरे सर डाबर अभी नेक टू नेक आ गया है, मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया है, तो काफी टाइम से उसमें परेशान हूँ सर। तो आपके व्यूज पे सोच रहा था कि थोड़ा एसकेएफ और थोड़ा शेफलर इंडिया पे इन्वेस्ट कर देता था। नहीं, don't do that mistake because they are from the same industry, Schaeffler and SKF. You do one thing, you buy Westlife and SKF. ठीक है, डाबर से परेशान हो गया सर बहुत ज्यादा। भाई लोग, जितने भी लोग हैं इधर, इंडिया का प्रमोटर 95% चोर है। इंडिया का प्रमोटर 95% स्टॉक मार्केट के रिगिंग में इन्वॉल्व है। दूर रहो ऐसे लोगों से। इट इज योर हार्ड एंड मनी, इट इज योर फैमिलीज मनी। डोंट स्क्वांडर आफ्टर दिस assholes यार। इंडियन प्रमोटर का शेयर लेने का ही नहीं कभी। देयर आर एक्सेप्शंस, आई एम नॉट सेइंग ऑल। और बोलो। सरविंद्र भाई आप बोलो। अभी मैं पूछ सकता हूँ क्या? नहीं, बहुत बड़ा बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इनका। अभी मेरे से पूछेंगे तो मेरा थोड़ा कंट्रोवर्शियल लोगों को लगेगा, बट सेंसेक्स के 40 साल के इतिहास में सेंसेक्स 10 से 11 बार 30% ऑन एन एवरेज या उससे ज्यादा गिर जाता है। तो विच मीन्स अराउंड 3.5 4 इयर्स, एवरी 3-4 इयर्स मार्केट एक बार इंडेक्स 30% गिरता है मोटा मोटी। तो स्टॉक्स तो डेफिनेटली 40-50% तक गिरेंगे, हाई बीटा जहां पे रहेंगे। कुछ स्टॉक्स कम भी गिर सकते हैं, बट ब्रॉडली मार्केट स्टॉक्स विल फॉल एनीवेयर बिटवीन 40 to 50%। जब मुझे मालूम ही है कि हर 4 साल में मेरा पैसा आधा होने वाला है, मेरी एनएवी, सो वी आर इन द बिजनेस ऑफ ट्राइंग टू टाइम दैट एज वेल। 10 में से 6 बार 5 बार 7 बार सही गए, 3 बार गलत भी गए तो स्टॉप लॉस करके हट जाते हैं, बट 7 बार हम वो अपना पैसा आधा होने से बचा लेते हैं। तो जब हम 7 बार अपना पैसा आधा होने से बचा लेते हैं और उस पैसे से हम जब नीचे माल बाय करते हैं तो हम एक के बजाय 2 शेयर लेते हैं। तो हर अच्छे फॉल में आप पोर्टफोलियो, हर 4-5 साल में अपना पोर्टफोलियो आप डबल कर सकते हो अगर आप टाइमली बेच पाए। मतलब दैट्स अ स्किल। थोड़ा फाइन ट्यूनिंग करनी पड़ेगी, थोड़ा उसमें पेन भी होता है, कई बार स्टॉक छूट भी जाते हैं, बट इफ यू आर एबल टू डू इट वेल, आउट ऑफ 10 टाइम्स, इवन 6 टाइम्स यू आर एबल टू डू इट, आउट ऑफ 10 टाइम्स 10 मेजर टॉप्स में से अगर आपने 6 बार ये कर लिया तो 6 बार में आपका पोर्टफोलियो आप डबल कर लोगे। मतलब जिस चीज के आप 100 शेयर बेचोगे 100 रुपए में और वो 50 रुपए हो जाएगी चीज, तो आप 200 शेयर बायबैक कर पाओगे, क्योंकि वो पैसा आपको अलग से रखना है, उस पैसे को आपको यूज नहीं करना है। So if you are No, able to no. do that, then you will be creating a lot more wealth than only pure buy and hold. So नहीं आपके नहीं क्वेश्चन का नहीं उत्तर ये है, सरेंद्र नहीं। उनके सवाल का जवाब ये है कि मैं 100% कैश भी चला जाता हूँ। So I sell every share। ऐसा कोई शेयर नहीं है जो मैंने लाइफ में पूरा बेचा नहीं होगा।
So I don't hold on to stocks. Every 4 No, 5 years I sell everything, lock, stock and barrel. अब नहीं नहीं And Sharad bhai, एक मिनट complete एक मिनट. And every bull market is run up by newer and newer stocks. तो अगले साइकिल के stocks भी नए मिल जाते हैं. So if you keep sticking to the same old stocks, आपको मजा नहीं आएगा आपको. So you have to also find new stocks for that rally. Every rally has got a new sector, new flavor. तो वो पकड़ना भी आना चाहिए. So I hope that answers your question. Saransh, my take is very different from Sarvendra bhai. I think and I do buy stocks, and if there is an event, it goes down by 5%, 10% max. ऐसे शेयर लो जो मैंने अभी बोला आपको, आपका वेल्थ यहाँ से 4-5 टाइम आराम से हो जाएगा. बट people get scared. Now there is one share called આપણે Honeywell Automation, 43,000 rate. I made somebody buy that share. So he said, इतना महंगा मैं क्यों लूं? तो मैं समझाया इतना मार्केट कैप पे ये बिजनेस होएगा. So people get scared looking at the price and all that. Don't buy only MNCs only. Period. And Westlife. It is 14,000 crore market cap. I won't be surprised if it touches 1 lakh. In it might take some long time, but it will. Yeah. So Saraj, don't bloody listen to any spaces, even my yes, spaces. Buy the shares and get out of it. okay. Yeah. Hello. Thank you, sir. Thank you so much. Yeah. Thank you. हाँ शरद सर जो पूछ रहा था ब्लू डार्ट अच्छा शेयर होगा क्या खरीदना? ओ आपका कोई रिलेटिव उधर काम करता है क्या? नहीं ऐसे ही देख रहा था, आप एनालाइज कर रहा था ब्लू डार्ट का. एटलीस्ट मतलब अच्छा लगा, आप जैसे जैसे बोलते हैं पैरामीटर, तो उस हिसाब से देख रहा था, तो इसलिए आपका गाइडलाइन चाहिए अरे और कुछ नहीं. मैं बोलता हूँ एसकेएफ इंडिया ले, अच्छा वेस्ट लाइफ ले, तो तू अच्छा. मेरे को ये पूछेगा क्या है? अच्छा है, नहीं ले ले ले, अच्छा है, ले. ओके जी, थैंक यू. हेलो या सर, मेरा क्वेश्चन सविंदर सर से है एंड इफ यू कैन आंसर टू शरद नहीं 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 सर. नहीं, पूछो पूछो. जब भी एक बेयर मार्केट स्टार्ट होता है, सो व्हाट्स द लाइक मिनिमम टाइमलाइन फॉर अ बेयर मार्केट, और उसमें इन्वेस्टमेंट कब स्टार्ट करना चाहिए? लाइक व्हाट शुड बी द रेशियो कि उसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अपन स्टार्ट करें? सरेंद्र, जी अब पहला मैं 2 मिनट आंसर देता हूँ. ओके. अब मैं आंसर देता हूँ. एक 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 पिक्चर आया था तकरीबन 40 साल पहले, 40-35 साल पहले, आई डोंट रिमेम्बर. जाने भी दो यारो, जाने भी दो यारो. उसमें वासवानी था और नसीर साहब थे. वो स्टोरी में ऐसा था कि एक डेड बॉडी को लेके वो लोग घूमते हैं, क्या क्या करते हैं. फिर सबको पता चल जाता है कि ये डेड बॉडी है. तो अपना जो मार्केट है ना, ओके. ये जो अपना मार्केट है ना, इज अ डेड बॉडी. ये 1600 से अपने खींच खींच के ले रहे हैं. हार्डली एनी स्टॉक से मूव्ड अप. आईटीसी, रिलायंस, बस मेन. तो you will be surprised. No, or you will not be surprised. It is my contention that this is the biggest bear market I have seen in my lifetime. And what will pan out, you don't have the imagination. You don't know what will happen.
हाँ सरेंद्र भाई, आप बताओ भी इनको। नहीं, मैं तो डेटा वाला बंदा हूँ, आपने अच्छा बोला इनको, मैं स्टैटिस्टिक्स इनको देता हूँ कि देखिए स्टैटिस्टिक्स में जब आप एवरेज लेते हो तो एक मैक्सिमम और मिनिमम, अब जब आप एक ऑब्जर्वेशन का सेट बनाते हो उसमें जो मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन होती है वो निकाल देते हो और मिनिमम वाली निकाल देते हो। तो सेंसेक्स के 40 साल के इतिहास में जो 10-11 बेयर मार्केट आए हैं सो कॉल्ड, Okay. Yeah. उसमें सबसे कम वाला था वो कोविड का था, 1 महीने चला। सबसे ज्यादा वाला था वो था आई थिंक 1982 से 84 या 84 से 86, आई थिंक 24 मंथ्स का एक बेयर मार्केट वहां था। तो ये दोनों का अगर आप निकाल दो और बाकी आप जाके बीच में देखो तो 18 से 15 महीने, 9 महीने, 11 महीने, ये नॉर्मल बेयर मार्केट्स रहते हैं। तो एनीवेयर आई थिंक एक 15 महीने का एवरेज आप पकड़ के चलो, क्योंकि कुछ बेयर मार्केट 8-9 महीने के रहे हैं, कुछ 18 महीने के रहे, 15 महीने के भी रहे। तो 15 महीने टॉप से जहां से एक अप्रिशिएबल करेक्शन, जिसको एक हम बोलते हैं कि हाँ भाई यहाँ से हमारा एक करेक्टिव वेव कंप्लीट हुआ, वो अराउंड Okay. 15 से 18 महीने चलता है। तो जहां से भी टॉप आप समझो कि हाँ भाई यहाँ टॉप हो गया, वहां से आप 15 से 18 महीने गिन लेना। उतना एक इंडिया में स्पेसिफिकली एक 15 से 18 महीने के बेयर मार्केट नॉर्मल है, उतने आते ही हैं। उससे कम में कुछ करना नहीं, वो पूरा हो जाए और आपको लगे कि मुझे करना है कुछ तो करना। ओके, सो व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड, पूरा जो एक सर्कल रहता है लाइक 15 महीने का, उसके बाद इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है। वी कांट बी लाइक कि एवरेजिंग करते हुए उसको बढ़ाएं। दैट्स व्हाट यू आर सेइंग। या सो आप बोल रहे हो कि बेयर मार्केट पूरा होने के बाद ही मैं घुसूंगा और आपको मालूम है कि एवरेज 15 महीने का होता है, तो आप 12वें महीने में चालू कर लो। 12वें महीने में थोड़ा ओके, ले लो, अरे 13वें भाई महीने में थोड़ा ले लो, भाई भाई 14वें में ले लो, 15वें में ले लो। फाइन कितना, फाइन फाइन। नहीं, अब 500 करोड़ लगाने क्या कहते हैं नो तेरे? नो सर, इट्स नॉट लाइक दैट, बट अरे इट इज बिकॉज यू डोंट अंडरस्टैंड. You are talking of the market. Market is Reliance. Market is HDFC Bank, TCS. Are you going to invest there? नो, डेफिनेटली Then नॉट। how are you concerned? Reliance 1500 हो जाएगा, तो तेरा क्या जाएगा? ओके, And now the markets have become very matured. Good will remain good and bad will become more. और सरेंद्र भाई, एक मेरा लॉजिक सुनो. अक्टूबर 21 में वो 18,800 हुआ और अभी 23 है, 19,400 है, तो 600 पॉइंट बढ़ा. राइट। तो बेयर मार्केट ही तो है ये. वो कौन सा बुल मार्केट है? एग्जैक्टली अगर आप, दैट इज आई एम सेइंग, अगर आप इसको मेरे हिसाब से, तो अगर आप 2021 के हाईसेस को पकड़ो तो 18,600 वाला भी आपका 1000 पॉइंट ही ऊपर होगा। 18 अगर आप जनवरी 22 अरे वाला भी टॉप पकड़ते हो तो आप अरे 1000 फ्यूचर पॉइंट में ऊपर। ओके. तो किधर है? वेर इज द बुल मार्केट? सर वैसे वैसे कोई, आप और मैं समझते हैं, बाकी लोग मानते नहीं है ना। एनीबॉडी हु शॉर्ट ऑन निफ्टी फ्रॉम 18400 इन सितंबर 2021, वो आज भी रोलओवर कॉस्ट लेके कॉस्ट पे ही, उसका तो मेरे ख्याल से कितना महीना हो गया अब, सितंबर ना, और अभी अपन एक 20 महीना हो गया। 20 महीने में उसने अगर 90 पॉइंट भी, एवरेज 70 पॉइंट भी रोलओवर खाया है, तो 1400 पॉइंट उसका निफ्टी फ्यूचर ऊपर है। 18400 प्लस 1400 पॉइंट, तो सर 19800 हो मैं गया क्या आपका। बताऊं? आज भी वो प्रॉफिट में है, आज भी वो प्रॉफिट में है सर। जो निफ्टी फ्यूचर शॉर्ट है 18,400 से सितंबर से, उसका आज कॉस्टिंग 19,800 है, वो आज भी 400 रुपए प्रॉफिट में है। तो वो तो आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये लॉजिक समझता कौन है कि कैरी में भी कमाना आना चाहिए। हाउ मेनी पीपल अंडरस्टैंड दैट? ओनली कमोडिटी प्लेयर्स विल अंडरस्टैंड दैट। गोल्ड सिल्वर करेंसीज, जिनको मालूम है कि कैरी से कितना बड़ा पैसा बनता है। कैरी खाना आना चाहिए, लोगों को आता नहीं है। इफ यू नहीं, आर एबल टू ईट कैरी, यू कैन मेक फिनोमिनल अमाउंट ऑफ मनी, फिनोमिनल अमाउंट ऑफ मनी इन दिस मार्केट। भाई साहब, आप आपको क्या कितना शेयर लेने का है? 500 करोड़ का लेना है क्या? 1000 करोड़ का लेना है? वो तभी जाके तुमको 1-2 करोड़ का लेने का है, ले लो ना अभी. क्या फर्क पड़ता है? एंड इट्स एन ओपन चैलेंज टू यू. You will not be able to time the market. Nobody can time the market. It's a myth. सर मैं आपसे प्यार से इसमें डिसएग्री करूंगा, ऐसा नहीं है, कर सकते हैं, बहुत बार किया है। मैं कभी आपको अपना थ्रेड भेजूंगा तो आप देख लेना। क्या? सर वी कैन टाइम द मार्केट, वही हमारा काम है, वही हमने 20 साल से किया है। वी कैन टाइम द मार्केट टू 60-70%। 3 बार अरे तो गलती that से way अच्छी I गलत can जाएंगे। make the market यार, क्या है उसमें? अरे सर तो वो मैं आपसे कहा, अपनी मैं तो बात नहीं आपसे है.
मैं तो आपसे कम्पीट नहीं कर रहा हूँ, बट मैं खाली एक ब्रॉड स्टेटमेंट के ऊपर बोल रहा हूँ दैट वी कैन टाइम द मार्केट विद सम लॉजिक। ऐसा नहीं है, मार्केट टाइम कर अरे सकते हैं। ठीक है भाई, लेकिन एन इन्वेस्टर उसको क्या दरकार है? अरे व्हाई आपके शुड ही जैसे, टाइम द मार्केट? आई एग्री। तो फॉर पीपल लाइक यू, लॉन्ग ओनली फंड्स, बड़े वाले प्लेयर्स के लिए अगर अच्छा शेयर लेके बैठे हैं, आपको बैठे रहना है तो आप बैठे रहो सर। आपके होराइजन से तो फिर मतलब मेरा तो होराइजन ही अलग है, आपका होराइजन अलग है, तो हम आपसे तो कंपेयर नहीं कर रहा हूँ मैं अपने आप को। या या चलिए, ओके। सर्वेंद्र भाई, आप हाँ जी, बोलिए बोलिए बोलिए। एक क्वेश्चन था. आई वाज गोइंग थ्रू अनंत आचार्य भाई's live streaming, and he was analyzing nifty components to this afternoon, and according to him, there was, all the nifty components had done their bit on the upside. So are you on the same page, or if you can please guide on the nifty नहीं, देखिए component? देखिए 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 ये तो गलत हो जाएगा एक दूसरे के रिसर्च पे कमेंट करना, बट आई थिंक ही Okay, इज गुड okay. इनफ। तो Okay, let me put नहीं, it डोंट other way. आंसर, डोंट नहीं आंसर आनंद, धर्मेंद्र, डोंट या आंसर। तो आनंद जी ने अच्छा ही किया होगा, अगर वो बोल रहे हैं तो फिर वो अपने हिसाब से सही बोल रहे होंगे। No. My point was just that, give me your views on the overall Nifty position, please. अरे बोला ना, मंदी लगता है, खत्म, क्या है क्या है। मैंने वही बोला आपको कि मुझे यहाँ से अब रिस्क रिवॉर्ड लेने के नहीं लगते हैं। आइदर यू सिट ऑन कैश और एल्स इफ यू हैव बॉल्स यू शॉर्ट। बट वो शॉर्ट के ट्रिगर अभी आए नहीं है मेरे हिसाब से। बट लॉन्ग साइड मुझे अब रिस्क रिवॉर्ड यहाँ बचता हुआ दिखता नहीं है। बहुत दमखम लगा लिया और तालियां, जस्ट अगर बाजार को तालियां बजवानी है, मार्केट हैज गॉट दिस बैड हैबिट ऑफ रनिंग टुवर्ड्स द साइकोलॉजिकल नंबर। अगर निफ्टी को ताली बजवानी है तो 20,000 का लेवल एक बार कर लेगा शायद, बट वो मेरा व्यू नहीं है। तो अब यहाँ से 400 पॉइंट कमाने के लिए आपको अगर पैसा डालना है भाई, तो आप देख लो। मतलब मेरे हिसाब से तो आई थिंक इट्स बेटर टू स्टे कैश। 20,000 के ऊपर जाके टिका किसी कारण से तो सोचेंगे। तो 400 पॉइंट बीच के मैं छोड़ने वाला हूँ। 19,600 से लेके 20,000 तक मैं बाजार छोड़ दूंगा। मुझे प्रॉब्लम नहीं है अगर ऊपर गया तो आई विल जस्ट स्टे असाइड, बिकॉज आई डोंट वांट टू गेट इनटू दिस मैडनेस। दिस इज कंप्लीट मैडनेस इन टर्म्स ऑफ सेंटिमेंट, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, इन टर्म्स ऑफ द वे। आज एक्सपायरी के दिन मैंने 7.5 करोड़ शेयर देखने ट्वीट करना शुरू किया था। आज बाजार ने मेरे को भी मात दे दी। 10 करोड़ कॉल और 10 करोड़ पुट टॉप 5 स्ट्राइक्स में ओपन रहना शुरू हो गए हैं। व्हाट इज दिस मैडनेस? नेकेड होके आप 10 करोड़ कॉल पुट चल रहे हैं, ठीक है, थोड़े बहुत आपने हेज कर लिए होंगे 50%, बट 5 करोड़ ऑप्शन आपके अनहेज चल रहे हैं एक्सपायरी के दिन। और प्रीमियम आपने क्या कमाया है? 3 रुपया, 1.5 रुपया, 5 रुपया, 16 रुपया, 26 रुपया। ये पागलपन है। और ये पागलपन किसी ने लेके लोगों को लेके डूबेगा। एक हफ्ते में ना साल भर का पैसा लेके जाएगा बाजार ऑप्शन राइटर्स का। ये हमने अपनी लाइफ में 6 बार देख लिया है, ठीक है। और सही हम बात. मार खा के हम लोगों ने देखा हुआ है, हमें मालूम है। हम 2008 में हमने अपनी सैलरियां कटवाई है कि हमारे ब्रोकर को पैसे लग गए थे प्रॉप डेस्क में। तो भाई साहब एक हफ्ते में साल 2 साल के पैसे लेके जाएगा बाजार। ये 100% मैं श्योर हूँ, बट वो कब होगा वो दिन मुझे मालूम नहीं है। बस मौके का इंतजार, मौके का इंतजार, मौके का इंतजार, करेक्ट। Any trigger to have this downside? नो नो, वी डोंट नो। नॉट दैट आई नो राइट नाउ। अगर मुझे मालूम होता तो फिर मेरा भी एंटीला के बगल में एक बड़ा वाला बंगला होता। Very fair enough. हेलो, Thank you. शरद सर। सर नमस्ते। नमस्ते सर एसकेएफ है मेरे पास, वेस्ट लाइफ नहीं है। दिव्यानी मैंने रखा हुआ है, दिव्यानी इंटरनेशनल। तो ठीक है, तेरे को उसका जो करने का करना बॉस, तेरे को जो करने मतलब का। काम तो वही है, वेस्ट लाइफ वाला ही, वही फूड चेन ही है। बट वही मैं जानना चाह रहा हूँ कि मैं मेरा मेरा मेन जानना ये है कि कोई भी स्टॉक जब महंगा हो जाता है, जब वैल्यू तो उसमें मतलब है तो कंपनी छोटी, बट जब उसका पी बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, तब थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, या थोड़ा उसको साथ ही लेके जाते रहना चाहिए। यहाँ लंबे टर्म के लिए 5-6 साल के लिए, 10 साल के लिए, क्योंकि कंपनी तो जिस हिसाब से लग रहा है कि अच्छा करेगी आगे फ्यूचर में, तो फिर कौन सा कैसे कंपनी का उसको लेना बात करता है चाहिए? भाई? तुम कौन सा कंपनी का बात करता है? हेलो हेलो हेलो। हेलो हाँ बोलिए ना, आप हेलो कौन सा कंपनी का बात करते हैं? अब बोलिए ना हेलो प्लीज। हेलो। नहीं शरद भाई, ट्विटर में कोई ग्लिच है, इको आ रहा है बहुत, आवाजें ठीक से आ नहीं रही हैं, इको बहुत आ रहा है। नहीं,
उसको पूछो कौन सा शेयर है उसके पास। शरद सर पूछ रहे हैं विच शेयर आर यू आस्किंग, विच शेयर? दिव्यानी दिव्यानी इंटरनेशनल पूछ रहे हैं शरद भाई, दिव्यानी इंटरनेशनल। इट इज वेरी एक्सपेंसिव और 26,000 करोड़ मार्केट के भाव 190 है, बट बहुत महंगा है। वेस्ट लाइफ उससे आधा है, उससे आधा है। ओके ओके ओके, ठीक है सर, बस वही जानना था, थैंक यू सर। ये आप लोग है ना शेयर भाव देख के मत लो नहीं नहीं कि सर, वैल्यूएशन के हिसाब से ही भाव देख के, मतलब मुझे भी महंगा लग रहा है, अभी मैंने होल्ड किया हुआ है, 128 पे लिया था मैंने, तो जो शुरू में भाई जब हिस्ट्री मत आईपीओ बोलना आया था तेरा, तभी। टैक्स लगेगा इधर तुम बोलेगा तो। ठीक है सर। यस। जी नमस्ते सर। नमस्ते। सर डांटना मत, पहले तो मैं आपको थोड़ा बधाई भी देना चाहता हूँ एचडीएफसी के बारे में। सर आई डोंट थिंक सो कि किसी ने इतना बोल्ड व्यू दिया है, और उसमें हमने पैसे भी बनाए। सर अभी एक ये वो सर्वेंद्र सर से भी पूछना है, और ये सर अभी मैं, मेरा एज 48 है, मैं काफी सालों से मार्केट देख रहा हूँ। ये टेक्निकल वेक्निकल सब कुछ अभी ये जो 1 महीने से 1.5 महीने से कम्प्लीटली आपको फॉलो कर रहा हूँ स्पेसिस में, तो मैं ये जान पाया कि ये सब साला बकवास है। जो मतलब कोई भी चीज वैल्यू पे है तो उसको बाय कर लो, और जो बढ़ी चुकी है तो ठोक दो। तो उसमें सर अभी ये मेरा है कि अभी जो ये चल तो रहा है, सारा विक्स बढ़ नहीं रहा है, रुपी टूट नहीं रहा है। एक दिन में 6 ट्रेडिंग सेशन में डॉलर इंडेक्स इतना $4 लुढ़क जाता है, इंटरेस्ट रेट राइज होता है। तो यहाँ ये टेक्निकल तो किसी के चलते नहीं है, तो फिर भी ये लोग टेक्निकल पे इतने आधारित रहते क्यों, जैसे हमने भी रिया था। और आई डोंट थिंक सो मैंने जितनी, ठीक है पैसे कमाए, लेकिन जितने कमाने चाहिए उतने नहीं कमाए। तो अभी वो सर्वेंद्र सर से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो इतना एक 6 ट्रेडिंग सेशन में ये डॉलर इंडेक्स इतना लुढ़क जाता है, तो उसका वो फिर भी साला सब कुछ लाइफ टाइम हाई पे, सब कुछ लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है, पूरी दुनिया लाइफ टाइम हाई पे चल रही है। तो ये मेडनेस है, ये फंडामेंटल है, ये क्या है? आप जान के क्या करोगे? करने का मतलब ये कि ये जो मतलब कि हर रोज ये नहीं देखिए, नहीं सर नहीं सर देख सर नहीं जानना, इसलिए सर सॉरी नहीं सर। नहीं हाँ। नहीं, आपको मैं समझाता हूँ भाई। हम्म, हम्म, ज्यादा सोचने का ही नहीं, क्या हम्म, लेने का वो सोचने का, हम्म, क्या बेचना वो सोचने का, हम्म। बाकी सब बकवास है। पर वही जो नहीं, अभी सर सर्वेंद्र सर बोले ना, वही 2 साल पहले जो निर्मला सीतारमन जी ने वो बजट किया था, उसी दिन से मैं बैंक निफ्टी में अभी तक शॉर्ट हूँ। तो काफी मुझे मतलब कि वो मैं समझ पा रहा हूँ कि उसमें शॉर्ट रहने में कोई वो कॉस्ट ऑफ कैरी तो मैं मिलने वाला है। तो मान लीजिए अभी इस मार्केट पे मैं 3-4 बार मतलब ट्राई कर चुका हूँ कि शॉर्ट कर दूं, तो साला हर रोज वो गैप गैप अप गैप अप गैप अप, हर रोज साला गिफ्ट निफ्टी 100 पॉइंट प्लस 100 पॉइंट प्लस उसको खींच के ले जाते हैं। तो इससे वो दिमाग घूम नहीं, जाता है। नहीं मैं क्या बोलता हूँ भाई साहब, हम्म, हम्म, ये जो आप कर रहे हो ना, हम्म, उसमें आपको 0.001% हम्म, अभी मालूम नहीं है। हम्म, आप मत खेलो, हम्म। आप स्टॉक्स खेलो। हाँ, स्टॉक में सर देखो मारुति 10,000 पे आया तो मेरा ऐसा, मैं मतलब मान के बैठा था, तो मैंने तो ठोक दिया, ठीक है 100-150 पॉइंट लेके निकल भी गया, लेकिन नहीं वो नहीं 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 नहीं, हम्म, आपने क्या किया नहीं किया नहीं उसको मैं उसका एग्जाम्पल किस बताना लिए, नहीं चाहिए आपको। नहीं इसलिए एग्जाम्पल देता हूँ सर, मान नहीं, लीजिए मैं कि क्या बोलता हूँ आपको, जो चीज मालूम नहीं है उधर जाने का नहीं, शान पट्टी उसमें ही है। समझ गया। नहीं वो सर मेरा कहने का मतलब ये कि मान लीजिए अभी 4-5-5-6 साल पहले मारुति 10,000 हुआ था, तो सर फिर मैं अभी क्या हाथ जोड़ता हूँ आपके, हम्म, अब पिछला वो छोड़ दो ना, आज का बात करो। तो वही है बस, बाकी तो वो तो तो नहीं आपका, आई रियली डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू वांट टू आस्क। आज के मैं ये करता हूँ कि सर ये इतना सबको, ये मान लीजिए डॉलर का इतना मेल्टडाउन हो अरे रहा है, पर तू देखता क्यों क्यों है यार? नहीं वो इतने मतलब फंडामेंटल से विपरीत कोई चीज जाती, मान लीजिए कि वो जिसमें अरे पॉजिटिव भाई पावर तुम, आना होता है उसमें नेगेटिव आ जाए अब फंडामेंटल, भाई मान लीजिए साहब, कि हाँ भाई जी। साहब आपको एक गोल्डन रूल समझाओ।
जी सर। ये डिस्कशन वगैरह है ना, ये ठीक है इधर। हम्म 9 बजता है ना, हम्म। कुछ दिमाग में रखने का नहीं। हाँ ट्राई तो नहीं करते हैं लेकिन शरद भाई इनको मैं पूछना चाहता हूँ, ये बोल रहे निर्मला सीतारमन के टाइम पे बैंक निफ्टी शॉर्ट थे, ठीक है, तो 25,000 का निफ्टी था उस समय, कोविड हुआ नहीं, तो वो निफ्टी 36,000 वाला, वो 32 से चला था वो वाला, वो इसके पहले वाला बजट। नहीं इसके अभी निर्मला अरे सीतारमन के छोड़ना बजट का यार, बात कर रहे हो कि कॉर्पोरेट एक्शन का बात कर रहे हो आप? अरे वो नहीं जो यार, जाने दो। मेरा सर सिंपल ये कहने का मतलब है, मैं पूछना या जानना ये चाहता हूँ कि जब मान लीजिए, मैं एग्जांपल इसलिए ये दे रहा अरे हूँ। पर मत दो ना, हम लोग को नहीं चाहिए। आपको परफेक्ट वे में खेलना है क्या? तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि सर ये मेल्टडाउन आएगा कि नहीं आएगा, ये सब कोई बीच, तो ये इतना एक एक तरफ पूरे फंडामेंटल विपरीत चल रहे, पूरे फंडामेंटल। जिग्नेश भाई, हाँ। आपको मैं 2-3 बार बोला डीएम करो, फोन करो, आप करता ही नहीं है। किया था सर, मैंने आपको किया था मैसेज। मैसेज मेरा प्रोफाइल पे व्हाट्सएप नंबर है, उस पे करो। किया था सर। मैं नेक्स्ट वीक में आपको सर पर्सनली मिल सकता हूँ? हाँ क्या? नेक्स्ट वीक में? नहीं नहीं, आप पहला फोन करो। ठीक है, चलो मैं कल बात करता हूँ सर आपसे। हाँ। Who's next? आप बोलिए भाई। या दीपक जुनेजा। हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ बोलिए। आ रही है, आ रही है, जोर में आ रही है। सर मैं ये पूछा, जैसे आपने एस्केप बताया या नोटिस किया, लेकिन हाँ हेलो हेलो आ, सर मैं ये कह हाँ रहा था बोलिए। कि जैसे अब ईवी ट्रेंड में चल रहा है काफी, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, जेबीएल मोटो है, ओलेक्ट्रा है, हाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो क्या ये जैसे इतनी बहुत रैली हुई है जेबीएल मोटो और ओलेक्ट्रा में, तो इनमें क्या इन्वेस्टेड रहना चाहिए? क्योंकि जैसे ओलेक्ट्रा लिया हुआ था मैंने 650 के अराउंड, तो अभी तो एग्जिट कर दिया, तो क्या इनका फ्यूचर क्या है अभी? नो आइडिया। देखिए, कंसेप्ट स्टॉक में मैं इन्वेस्ट अभी नहीं ओके करूंगा, बाद में करूंगा, 2 साल के बाद। और बताओ। तो सर जैसे शरद सर, या मेरा वेट। एक क्वेरी है, कैसे हो? मेरा क्वेरी ये है कि मेरे पास अभी निफ्टी में मैंने ऑप्शन ट्रायंगल बनाया है, 19500 का कॉल सेल किया है जुलाई एंड सीरीज का, हम्म एंड दूसरा मैंने सेल किया है 19100 कॉल जुलाई एंड सीरीज, एंड 18400 पीई जुलाई एंड सीरीज का सेल किया है। हम्म एनी लाइक चार्ट्स पर से तो मतलब थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा है कि इट शुड क्लोज बिलो 19500, बट 19100 कॉल आई एम थिंकिंग कि उसको अगर हेज करना है तो किसके साथ हेज करें? वो सौदा ही काट डालो, स्क्वायर ऑफ द ट्रेड। अच्छा, और एल्स ऐसा कर सकते हैं कि 19100 कॉल को मैं स्क्वायर ऑफ कर दूं और 19500 को डबल अप कर दूं? आपके पास मार्जिन है क्या? हाँ, मार्जिन तो पड़ा है, कितना पड़ा है? 1.5 लाख जितना है। आर यू सीरियस? 2,50,000 एक ही लॉट है मेरे पास, एक एक लॉट ही है सबके। हाँ तो रुक, अभी रुक। मतलब वेट ऑन करना चाहिए मुझे? हाँ वेट, जब तक तेरा पैसा खत्म नहीं होता ना, वेट। 2.5 लाख लेके ऑप्शन बेचता है, शर्म आता है कि नहीं तुमको? ये धंधा नहीं है क्या मतलब तुम्हारा? एक्सेस एक्सेस है मेरे पास, पड़ा है। क्या एक्सेस है? मतलब
अराउंड 10 lakhs जैसा है मेरे पास कैपिटल, बट मैं एक एक लॉट में ही करता हूँ, खाली अरे ऑप्शन पर सेल। राजा, मैं क्या बोलता हूँ, तेरी हाँ आवाज से तू हाँ यंग लगता है, बराबर है? यस सर। काय को जाते ऑप्शन में यार, क्यों जाते हैं? ऑप्शन एक ऐसा जहर है, वो सबको खा जाता है, सबको खा जाता है। प्लीज डोंट डू दिस। और ठीक है पूरी रात डाउ जोन्स देखेगा, ये देखेगा, मत करना यार, स्टॉक्स में कर। चलिए ठीक है सर, ओके थैंक यू। ठीक है, बाय। यार अनम्यूट एंड स्पीक भाई। सन, संजय गुप्ता बोलिए ना सर। हाँ बोलिए। शोएब जेठवा। हेलो सरेंद्र, मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ शरद, आ रही है, आवाज आ रही है। तो वो किसी को बोलो ना बोलने को यार। Yeah, guys, anybody on the speaker who wants to go one by one, you can go. Hello. Ask your questions. Hello, sir. हम्म, Good evening. I'm Santosh here. बोलिए। Today, HDFC Bank up by 8 point. Morning it was up by 22 points, but 1700 call option dropped, premium dropped. Yesterday, HDFC Bank dropped, but option is not dropped. So why that much of melting in premium? Even that script is go up and the candle was red today, even up. I'm confused. Please tell me. You આપણે hold any option of HDFC Bank? Yeah, 1700 call option is there. Okay. And it dropped from where to where? Sorry? It dropped from what price to Yeah, what price? today 22 rupees of underlying stock, but premium has not gone. The delta is 29 paise, 30 paise around. But the premium will become minus. Why that kind of trading happen in even the underlying stock is go up, but delta is positive, but premium is dropped. I don't know why this kind of happening in options. So it is very simple. There were more sellers of that option. So the price went down. And in technical terms, Sarvendra will explain. नहीं, ऑप्शंस में तो देखिए, there are so many reasons why this can happen. One primary reason is, as Sharad bhai said, कि there could be a lot of sellers in that counter at that price. Secondly, I think एक corporate action था बहुत बड़ा, वो उसका adjustment हुआ लास्ट एक दो दिन में, वो adjustment हो गया corporate action का, उसकी वजह से जो इवेंट के पहले की जो वॉलेटिलिटी थी, implied was cool off हो गए होंगे. So because the implied was cooled off, possibly that is why also your premiums are down. So the volatility has cooled off in that space, and आपका एक इवेंट डिस्काउंट हुआ, उसके पीछे की वॉलेटिलिटी जो थी वो कूल ऑफ हो गई. इसके लिए आप, इवन दो द स्टॉक वेंट अप, योर प्रीमियम डिड नॉट गो अप बिकॉज वॉल्स आर डाउन. No, as per delta calculation, it has to go up, right? No, where there is written that as per delta, if the walls come down, the option price will go down, delta can remain same. Volatility cools off, risk premium cools off, the price can go down. So this is the first time I have Are, seen in this. Please read something called as volatility, playing the volatility in options. If you are doing options, you need to know what Yeah, is an implied volatility. Yeah, so please go and read some articles about implied volatility and volatility. okay, sir. Sarendra bhai, which book one has to read?
सर अब मैं तो डेरिवेटिव वाला नहीं हूं, तो आई डोंट हैव अ बिग रीड ऑफ द डेरिवेटिव बुक्स। कोई मुझे आई डोंट नो अ गुड टाइटल, बट डेरिवेटिव्स का कोई भी अच्छा बुक उठा के पढ़ना चाहिए। नहीं, मेरे को बोलो Sir, ना, मैं भी मंगाता हूँ. sir, two things happen. Yesterday, HDFC मैं Bank आपको dropped, नाम निकाल के but देता हूँ। अरे, there was an event yesterday. Why don't you understand? And mark my words, tomorrow it will collapse. So if you are long, get out of it. Book the loss. Okay. हेलो. Yeah. यस, आई वांटेड टू नो, अभी जैसे मार्केट काफी बढ़ गया है, तो एज अ डिफेंसिव प्ले फार्मा सेक्टर कैसा रहेगा, जस्ट इन जनरल? अरे, फार्मा सेक्टर लेगा, उससे अच्छा हॉस्पिटल ले ना. हॉस्पिटल वो बहुत पैसा बनाएगा, हॉस्पिटल सेक्टर. ओके. Yeah. Yes. हेलो Who's? शरद सर। हाँ. सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग. मैं जयंत बोल रहा हूँ सर। सर एक्चुअली मेरे पास 1 लाख क्वांटिटी जीटीवी का शेयर है, मतलब कैश में है। तो इसको क्या सर रखना चाहिए, क्या फ्यूचर लग रहा है इसका, क्या हो सकता है? जी क्या भाव है? एंटरटेनमेंट, जीटीवी नहीं, हाँ जी एंटरटेनमेंट। 195 में है सर, 195। 1 लाख शेयर है तो, और 2 करोड़ हाँ जी, रुपए का है. हाँ लगभग, थोड़ा हम्म, कम। नहीं रखिए, तो अच्छा रहेगा. एक्चुअली सर वो सोनी के साथ मर्जर होने वाला है, तो अच्छा. उसके कुछ लीगल बैटल में चल रहा है वो, तो प्राइस बहुत ही नीचे है, तो मैं इसीलिए लिया है। मेरा हो गया ज़्यादा, मतलब हो गया 6 महीना से ज़्यादा ही होल्डिंग है। तो आगे क्या कैरी कैरी करूं उसको? हम्म. हाँ, अच्छा कैरी अच्छा, करो. अच्छा अच्छा, ठीक है सर, ठीक है, और थैंक यू कुछ सर। ज्यादा पूछने का है ना, हम्म, तो मेरा नंबर है. मैं ओके ओके, उस पे आप फोन करना कल, बाजार के बाद. ठीक है। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो 4 बजे कर लूँ? कर लो. ठीक है सर, मैं कल आपको कॉल करता हूँ। थैंक यू. थैंक यू सर। ओके। ओके. चलो. Who's next? इंद्रा. हेलो। या. हाँ सर, गुड इवनिंग, संजय है। हम्म. अच्छा सर, मैं एक 2 दिन से देख रहा हूँ, एक स्क्रिप्ट है एयू बैंक। हाँ, उसका फ्यूचर डिस्काउंट में चल रहे हैं, उसके मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। काफी ना कोई कॉर्पोरेट एक्शन है ना कुछ, कैश से कम ही चल रहा है फ्यूचर, और ज्यादा वो तो नहीं नहीं, बहुत सारा ये लोग क्या करते हैं, प्रमोटर लोग है। कैश में टिकाता है. अब भाव को मेंटेन करता है, तो जिसको बेचने का है फ्यूचर में है और शेयर नहीं है उसके पास, वो फ्यूचर बेचता है, तो फ्यूचर वो डिस्काउंट में चले जाता है. ये मैनिपुलेटेड स्टॉक है. दिस इज 100% मैनिपुलेटेड स्टॉक. इट शुड नॉट बी वर्थ मोर देन 100 रुपीज. और पूछो. बस बस, मैं तो थैंक यू. देख रहा था, लेकिन कुछ वही मैं समझ रहा था, मुझे भी लगा मैनिपुलेशन से, लेकिन इतना एक दिन 2 दिन हो गया, कोई एक आध घंटे 2 घंटे रहते, 2 2 दिन लगातार हो गया, दो अब तीसरा दिन था, वही थ्रू आउट द बहुत डे, सारा था. थ्रू आउट द डे। जुबिलियन जुबिलियन फूड वो सब था. ओके। ओके. बोलिए दूसरा. Hello, sir. हाँ, बोल बोल. Sir, good evening, sir. हाँ, बोलना भाई, बोलना. गुड इवनिंग Sir, हो गया. the हाँ. other day you were speaking about HDFC and HDFC merger issue. All the people were discussing. That was the first time I was following your spaces. You were telling instead of taking HDFC and HDFC Bank, go for a Geo demerger like that. You were telling. हम्म. So, sir, is it
worth to take for short term to long term wealth creation for my children? If I am a new investor, I want to go with 10,000 to 50,000 like that. Do you still stand by that word? No, see, trading is different. Sir. Investing at what level, it depends. Yes, For sir. you, you should not go into mega caps Okay, like Reliance and all that. sir. Go in for equity around 30,000 max, थर्टी Okay, sir. थाउजेंड crores. उसमें आप लीजिएगा. Okay, sir. Sir, do you can you suggest some stocks like that for children's future? You go on my timeline, I have mentioned. Okay, sir. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Thank you for giving the opportunity. हेलो हाँ बोलो. सर, ये डिफेंस सेक्टर के जो स्टॉक अभी रोज के 10% 20% जो बढ़ते हैं, मजदूर, ये सब जेन टेक्नोलॉजी और प्रीमियर एक्सप्लोसिव, तो क्या वापस नीचे आते हैं कि कैसे चलते हैं? मतलब ये एक 4 दिन में 50% चल जाता है स्टॉक, तो ये कैसे चलते हैं मतलब? नहीं आपके पास में ये आपने है क्या? नहीं, मेरे पास नहीं। हाँ, नहीं नहीं नहीं, मेरे पास नहीं है। तो फिर छोड़ना यार, काय को माथा चुप करता है. एक 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 गांव में आपने हवेली होता है, फिर सब घर होते हैं ना, फिर वो कूड़ा होता है. तो छोड़ो, अपने को क्या लेना देना भाई. नहीं तो इसमें एंटर करना, तो इसमें कैसे, कब एंटर करने का, वेट करना है, कब तक? काय को इन्वेस्ट करने का है तेरे को? डिफेंस में लोग बोल रहे हैं ना, बहुत अच्छी रैली चलेगी, मोदी साहब भी डिफेंस में बहुत फोकस कर रहे हैं, इसलिए। अच्छा, ले. अच्छा है, बहुत अच्छा है, ले. आप 5-10 साल में अच्छा रिटर्न मिलेगा आपको. नहीं सर, आपका व्यू क्या है? आप गाइड करो तो अच्छा रहेगा ना। अरे बोल दिया ना. ये मैं ये गाइड करता हूँ कि ये मतलब बिना का है. अच्छा, ऑपरेटर रैली है। हाँ जी. ओके सर, थैंक यू। हेलो सर। नमस्ते शरद सर। टाटा केमिकल पे क्या व्यू है सर? उसका पीई भी 10 के आसपास चल रहा है, और टाटा ग्रुप का है तो. हाँ तो 3-4 का पी में मिलेगा. ओके सर, टाटा कम्युनिकेशन एंड गोदरेज प्रॉपर्टीज। अब कौन बोला? हेलो. हाँ सर, टाटा कम्युनिकेशन एंड गोदरेज प्रॉपर्टीज पर आपका व्यू सर? क्यों? अब गाय को दे जा. अब मैं तेरे को मेरा व्यू क्यों दूं? अब पैसा दो हमको. सर आई एम अच्छा होल्डिंग। क्या? सर आई एम होल्डिंग फ्रॉम 1 मंथ, सो लॉन्ग टर्म के लिए सर होल्ड करेंगे? हाँ, लॉन्ग टर्म. सी, टाटा केमिकल, टाटा कम्युनिकेशन सर। टाटा कम्युनिकेशन, यस सर। 17 तारीख को रिजल्ट है, देख लेना. ओके. श्रीनिवास राव के. सर तो होल्ड करेगी नहीं, मतलब कैसा? अरे मेरे को क्या मालूम तेरे को, तेरे पास कितना पैसा है. अब पैसे के ऊपर डिपेंडेंट है ना सब कुछ. सर अराउंड 15 लाख। अरे यार, ठीक है यार, एक स्टॉप लॉस रख देना कुछ भी. श्रीनिवास, you average. हाँ. Yes, sir. So I wanted to quickly ask you,
कि कभी कभी हम शेयर तो ले लेते हैं लाइक सस्ते भाव में, जब मार्केट गिरा था देन आई बाइड सम ऑफ द स्टॉक्स लाइक टाटा मोटर एंड ऑल दोस, पर ये पता नहीं चलता कि शेयर्स बेचने कब चाहिए, कि मतलब व्हाट्स द राइट टाइम टू सेल द स्टॉक्स। तो कभी कभी हम यही सोचते हैं कि लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म, बट वो पता तो चलता ही नहीं है कि मतलब ये कब बेचना है। सो फ्रॉम योर एक्सपीरियंस आपको कुछ बताना है? सरेंद्र भाई बता दो उनको। नहीं है क्या सरेंद्र भाई? नहीं, मैं इनका सवाल नहीं सुन पाया, क्या बोल रहे थे ये? नहीं। कि हाँ, कि कभी कभी क्या होता है कि जब मार्केट उठता है तो हम शेयर्स तो ले लेते हैं, बट वी डोंट नो व्हाट्स द एग्जैक्ट टाइम टू लाइक सेल द स्टॉक्स। लाइक अब मैंने टाटा मोटर ले लिया था समथिंग अराउंड लाइक 480, बट लाइक मेरे पापा बोल रहे थे कि भाई रखना है रखना है रखना है लॉन्ग टर्म, बट वो लॉन्ग टर्म का टाइम तो पता ही नहीं है। एंड तो बस वो जानना है कि व्हाट्स द राइट टाइम टू सेल द शेयर, वो आप कैसे प्रिडिक्ट करते हो लाइक फ्रॉम योर एक्सपीरियंस? नहीं देखिए, ये तो स्पेस पे समझाना बड़ा बड़ा मुश्किल है। ये इट्स ये तो हमने इसी काम को करने के लिए हमने कितने साल दे दिए और अभी भी सीख ही रहे हैं। मतलब वी आर स्टिल लर्नर्स, सो मेनी न्यू थिंग्स मार्केट कीप्स ऑन शोइंग अस ऑन एवरी डे। सो इसका इतना सिंपल जवाब मैं आपको एक लाइन में तो कहाँ से दे पाऊंगा और स्पेसेस पे तो कहाँ से दे पाऊंगा। इट्स अ होल, शरद भाई से, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस विद टाइम, विद प्रॉपर लर्निंग, प्रॉपर मेंटर्स, गुरुज, प्रॉपर बुक्स, वो जैसे आप एक, आपने क्या पढ़ाई की है, इफ आई मे आस्क? Currently, I am doing masters in computer science at Canada in University of New Brunswick. Okay, so you are doing in new, you are doing such a professional course. So, if you don't mind, may I ask the course fee? What is the course fee there? Sorry, can you repeat? What will be your course fee? आपका आपका course fee कितना है वहाँ पे? मेरी साल कोर्स का? फी है अभी 20 लाइक 2 years की अराउंड 32 lakhs. 32 lakhs. तो आप एक प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, उसके लिए 32 लाख रुपए आप Yeah. खर्च कर रहे हैं. दिस इज फॉर एवरीबॉडी टू अंडरस्टैंड. And markets also, we are also professionals. Market is also it is for professionals. It is not for amateur trading or okay. So अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर रहे हैं किसी के गाइडेंस में, तो किसी का हेल्प लेके कर रहे हैं, तो ही आप इसको अच्छे से कर पाएंगे। या आपने म्यूचुअल फंड में पैसे डाले हैं और आप भूल गए तो एक अलग बात है। बट अगर आप इसको खुद करना चाहते हैं तो यू हैव टू बिकम अ प्रोफेशनल इन द स्ट्रीम। तो आपको इन टर्म्स ऑफ टाइम, मनी, एफर्ट, सब कुछ खर्चा करना पड़ेगा। पैसे से भी ज्यादा टाइम इस बाजार को देना पड़ता है, क्योंकि इंजीनियरिंग तो आप 3 साल में पढ़ के निकल जाओगे और आप सीख जाओगे कि हाँ चलो कोडिंग कैसे करनी है। बट मार्केट के कलर्स, फ्लेवर्स इतने अलग अलग होते हैं। In every cycle, the stocks are different. In every bull market, the flavor is different. The sectors are different. There is rotation, there is churning. कभी फॉरेक्स चल रहा होता है, कभी कमोडिटीज, कभी प्रेशियस मेटल्स, गोल्ड, सिल्वर। तो फाइनेंशियल मार्केट्स में आना है तो पूरा टाइम, एफर्ट, पढ़ समझ के आना है। एंड सैडली कोई कोर्सेज नहीं है स्पेशलाइज बहुत ज्यादा दुनिया में। कुछ एक आध एमएससी इन फाइनेंस, एमएससी इन इन्वेस्टमेंट, 2-4 यूनिवर्सिटीज में है, बट नॉट मेनी यूनिवर्सिटीज आर डूइंग इट डेडिकेटेड कोर्सेज फॉर स्टॉक मार्केट्स। तो जो भी 2-4-10 कोर्स हैं उनमें से कोई करिए, या किसी अच्छे गुरु मेंटर को पकड़ के पढ़िए और फिर करिए, बिकॉज इट इज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन टू आंसर विदाउट एनी फॉर्मल गाइडेंस ऑन दैट सब्जेक्ट. Okay, okay, no worries. Thank you, sir, for giving this opportunity to speak. Thank you. या श्रीनिवास बोलिए। हाथ ऊपर करते है, बोलता नहीं है यार। के बोलो के। गुड इवनिंग शरद सर, सर्वेंद्र सर। एक छोटा सा क्वेश्चन था। तो मतलब सुनते रहते हैं, दूसरा भी काम करते रहते हैं, उसका मतलब ये नहीं होता है कि शरद भाई की बात नहीं सुन रहे हैं या किसी की बात सुनने नहीं आप रहे हैं, बोलिए इसका ना, मतलब ये नहीं होता है ना। आप मैं बोलिए ना, ऊपर लगाया है, ऊपर सवाल में क्या है? एक नहीं, ऊपर एक फाइल लगाया है मैं आपके स्पेस पे, तो वैसे ही फाइल्स लगा रहा हूँ मैं, फाइल्स लगा रहा हूँ। क्या है भाई, निफ्टी क्या है, निफ्टी क्या है, इकोनॉमी क्या है, पैसा कैसा आता है, पैसा कैसा जाता है बाहर। चलो नेक्स्ट। ओके Sir, can I speak? वेट। ओके शरद जी, आई थिंक मे बी यू आर टॉकिंग फॉर मी, कार्तिक। सो शरद जी, सर्वेंद्र जी, एक छोटा, गुड इवनिंग फर्स्ट, एक छोटा सा सवाल था। गुड इवनिंग।
When you so अभी as we have all seen there are massive floods in northern parts of India. जब भी इस टाइप्स के floods होते हैं तो what kind of which sectors of economy you see जहाँ पे अगले 2 क्वार्टर में रिजल्ट्स ठंडे रहते हैं, just for our guidance sake from your vast experience. I leave it to Sharad sir. मतलब मैं तो I am a pure technical guy, so these events would whatever show up on charts, तो वो तो हम ट्रेड उसके हिसाब से कर लेंगे. Definitely the companies in the north would be affected, and companies all over India who are supplying to North India, there will be a dip. But that dip is only for this season. So I don't think there will be much of an impact on that level. और सर बताइए. Thank you, sir. So इतना सही जानना था. Otherwise, we enjoy your spaces a lot, and we're just Thank you. waiting for that dip जिसमें हम पैसा deploy कर सके. My shirt is also red today. Okay, thank you. Yes, बोलो. कोई Can भी. I speak now, sir? Yeah, Sharad sir, good evening. yeah. Good evening. सर सर्वेंद्र सर गुड इवनिंग. आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया, बुकिंग कब करनी चाहिए, और शरद सर की तरह आप क्लैरिटी के साथ बोला कीजिए. यू आर ए टेक्निकल पर्सन, तो ये गोल गोल घुमा के जो आप पूछते हैं नहीं, this is मेरे लिए nonsense. अनएक्सेप्टेबल है. मैं शरद सर के सारे स्पेसेस सुनता हूँ. आप भी उनकी तरह कम से कम क्लैरिटी के साथ. Who's next? नहीं, क्या 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 क्लैरिटी चाहते हो आप? क्या अरे क्लैरिटी नहीं, चाहते हो? निकाल दिया, छोड़ना उसको यार. Good evening, Anybody? sir. Sir, can I speak now? No, just a moment. If you Okay. have a different opinion, you are most welcome to put it across. But don't get personal. Not a single word against any speaker or any listener. Be decent. चलिए, तेजस भाई, क्या नाम है? Sir, good evening. Good Sir, evening. power grid invite लिया है sir. अच्छी quantity लिया है sir. Can I add more or shall I wait? Thank you. Where are you based? Sir, मैं हुबली में रहता हूँ sir. It's a small town in Karnataka. अरे पता है यार, क्या हमको नहीं मालूम? हुबली, धारवाड़. हाँ sir. फिर काय को मंगा जी. हाँ sir. See, I can tell you certain ways where you can easily earn 4% per month with the risk of 1% or 2%. Hello? Yes sir. I'm hearing you. Yeah, you can deploy there. वो अभी एक में मत डालो बहुत. अच्छा sir. वो मांगता है तो IRB का भी ले, वो सब ठीक है. And let me tell you one thing, IRB is no more an Indian company, it's a foreign company. Okay sir. And if you have, so you give me a buzz on Saturday. I will ठीक है sir. explain you how you will make money on interest. ठीक है sir. अभी But तो क्या कर रहा हूँ sir नहीं कि I नहीं, have. but in your life, never ever give money to friend or any person. You will lose that money. System में डालो पैसा. वही sir. Sir, right now I have lots of IT shares like LTIM or TechM or Infi है sir. तो हर महीने उसका कॉल बेच बेच के जो प्रीमियम आता है सर, उससे मैंने पावर ग्रिड इन्वेट लपेटा है सर. तो कुछ और शेयर्स भी लपेटे हैं सर. सो दैट्स हाउ आई एम वर्किंग इट आउट. You give me a buzz on Saturday. My number is there. पक्का सर. On the profile. Thank you. ठीक है सर. थैंक Yeah. यू. नमस्ते सर. सर अडानी नमस्ते. ग्रुप पे क्या व्यू है सर आपका? एक कौन बोला? अरे फर्स्ट क्लास. अडानी भाई जिंदाबाद जिंदाबाद. और मोदी खड़ा कुछ? है सर पीछे, इसलिए पूछा था. हाँ, क्या खड़ा है?
हाँ, हेलो, क्या खड़ा है? चल, बोलता ही नहीं है यार। दीपक जुनेजा, बोलिए। सर ऑलरेडी क्वेश्चंस हाँ। सर मैंने पूछ लिया। ये अडानी वाला भाई कौन है? कोई नहीं, चलिए। मनीष भाई बोलिए। मनीष भाई, चलो गाइस, नो मोर स्पीकर। If Yash is there, he can give a disclaimer before you wrap up, Sharad bhai. हाँ, if you do anything, it will be on you. Listening to me is harmful to health, but good for your wealth. यार क्या ठीक है भाई, जो भी करो अपना करो, सोच समझ के, सट्टा मत करो। ऑप्शन खेलोगे तो बहुत गुस्सा आता मुझे। सो हाँ Yeah. भाई। So what we share here as speakers is these are broad opinions. Anybody wanting to do anything, please consult your financial advisor. What we've discussed are ideas and broad thoughts, not any ideas for recommendation to buy, sell securities. Yeah. So please keep that in mind. And whatever shares I have mentioned, if you buy, it will be at your risk of making lots of money. You will make lots and lots of money. Yes, Tej. जल्दी फटाफट। हेलो, गुड इवनिंग सर। हाँ, बोलो बोलो बोलो। सर मेरे पास डेनोरो इंडिया और एलएनटी का एसआईपी कर रहा हूँ, उसमें थोड़ा थोड़ा हर मंथ में। तो अभी भी करता रहूं इस लेवल पे भी? कितना एसआईपी करता है तू? मैं 10,000 हर मंथ। लिंडे इंडिया कर। ओके, ठीक है सर, थैंक यू। आप बोलो, आ जाओ। अजय हेलो मेहता। यस। शरद जी। हम्म। शरद सर, गुड इवनिंग। शरद सर, ये लॉयड स्टील के बारे में कोई व्यू होएगा आपका? नहीं मालूम भाई जी, ठीक ये है। ये एक बात बताओ जी, ये कचरा पट्टी वो क्यों लेते हैं तुम लोग? अ, ये मैंने सुना था इसने अभी टेक्निकली ऑल टाइम हाई तोड़ा था, इस करके मैं इसमें एंट्री मारा था अभी 2 दिन पहले। ठीक है ठीक है। सर रिलायंस को अभी शॉर्ट कर सकते क्या? नहीं भाई नहीं, चढ़ते हुए सूरज को कभी ठोकने का नहीं। तो रिलायंस को शॉर्ट करने का सही क्या रहेगा? अरे वो क्यों बेचने का आपको रिलायंस? क्योंकि एक स्ट्रैटेजी किया था उसमें 2700 का कॉल पुट सेल करके बटरफ्लाई बनाने का, बियरिश बटरफ्लाई। भाई तू लेन देना यार, लेन देना। क्या बोले सर? नहीं, मुझे मतलब समझता नहीं है ये सब। कितना पैसा है तेरे पास? सर अभी लगभग अराउंड 25 लैक्स। तो ये क्यों करता है ये काम? सर फिर आप कुछ मेरे को ऐसा आइडिया बता सकते हैं जिसमें अराउंड 2% मंथली मिले? और तेरे को 4% दिखाऊं तो तू 2% देगा मेरे को? 2% मंथली? हाँ, लेकिन मैं अगर तेरे को 4% दिलाऊं हाँ सर। तो 2% देगा क्या मेरे को? हाँ सर, क्यों नहीं दूंगा सर, अगर 4% मिलेगा तो मेरे को तो टारगेट 2% ही है सिर्फ। देखता हूँ भाई, सोचता हूँ।
यस सर क्योंकि तो सेफली अगर 2% मिले तो उससे अच्छा टारगेट और क्या हो सकता है। सर यूपीएल पे आपका क्या व्यू है सर, यूनाइटेड फॉस्फोरस लिमिटेड? 100 रुपया हो जाएगा। तो निफ्टी 50 ये कौन से स्टॉक में से आपका फेवरेट है सर? 50 स्टॉक में से कोई भी जो आपको अच्छा लगता है। एक्सपेंसिव है सब कुछ। एक भी स्टॉक अच्छा नहीं है सर जो ले सके इस भाव में? नहीं, और मैं निफ्टी 50 में इन्वेस्ट नहीं करता भाई, मैं सब आड़ा टेढ़ा फालतू शेयर में डालता हूँ। सर अभी निफ्टी का क्या व्यू है आपका? और डाउन जाएगा। अच्छा ओके, अभी मतलब ये टॉप बना चुका है, ऐसे ही समझो, अपन पकड़ के चल सकते हैं। अरे आपको जो सपने देखा समझो, मेरे को लगता है नीचे जाएगा, अभी नहीं जाता है तो मेरा क्या है, 1-2 लग जाएगा और क्या पैसा, ठीक है ना यार। शॉर्ट कर सकते हैं अभी। वो नहीं मालूम भाई, इतना कैसे, why are you so much क्या बोलते हैं आपड़े, हाँ, why are you आपड़े इनेमर्ड बाय मी यार, मैं एक ऑर्डिनरी आदमी है। नहीं वो सर, क्या आपके कर, व्यूज हमेशा एकदम अच्छे रहते, कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि बियरिश ट्रेडर, बियरिश में कैसे पैसे बनते हैं इजीली, तो बियरिश ट्रेड करने में मजा आता है। आदत पड़ जाएगी ना, मर जाएगा साला, मंदी करने की आदत पड़ेगी ना। मॉडरेशन में सब कुछ अच्छा है। हाँ सर, वही मॉडरेशन में, मतलब टाइम पे बुक कर लेंगे फिर। तो यार बहुत बात करता है यार, चल शनिचर को फोन कर। ओके, ओके सर, ओके। थैंक यू। हाँ भाई, कौन है अभी? दि, दिलीप भाई बोलिए ना। शशांक। हाय। तो बेसिकली जो अहमदाबाद वाले लोग हैं, तो जस्ट वांट टू, आई मीन, थॉट अबाउट दैट कि उनकी तो 6-7 कंपनी में से 4-5 कंपनी, 3-4 कंपनी निकाल दी गई है, बट देर आर 20 कंपनीज आर देयर विच इज waiting for a listing in the market. So basically इतनी सारी कंपनियां जब भी प्रॉपरली लिस्ट होगी, आई मीन द नेचुरल मूव ऑफ द मार्केट जो आना चाहिए इन फ्यूचर, कमिंग 3 years, 4 years, 5 years, whenever, which is very difficult. So I mean, how, Sharad sir, I mean, you are the senior, most senior person. So how can the system will allow all these things? कि ये नेचुरल मूव को रोकना, नेचुरल मूव तो कोई भी नॉर्मल इन्वेस्टर या बड़े से बड़ा नॉर्मल इन्वेस्टर भी एंजॉय नहीं कर पाएगा। तो कुछ तो, आई मीन, कुछ तो इसका रास्ता होगा। और बताओ भाई। हेलो। Yes, just a question, just a normal question to you, कि उसका कोई तो रास्ता होगा ये, आई मीन, in future what will going to happen if suppose some group of company will uh, acquire 20-30%, 20% of the market? अरे यार, आई डोंट बिलीव इन पास्ट, आई डोंट बिलीव इन फ्यूचर, आई बिलीव इन प्रेजेंट। अभी का बात करना, 5 साल किसने देखा है? Wonderful.
correct. But the game will going on ahead also, but the things will be the same. नहीं अभी कुछ भी तुम कोई भी पिक्चर देखेगा वो 3-4 थीम ही रहता है ना सालों साल तक, तो ऐसा ही है। ठीक है यार, अरे मैं क्या बोलता हूँ, इतना स्ट्रेस क्यों पालता है तू? ये होएगा ना वो होएगा ना, खा पी के मजा करना यार। Obviously, just a normal discussion, not. अरे बट व्हाई एट व्हाट टाइम इट इज नाउ? आई एम ऑलमोस्ट स्लीपी। 12:33। अभी 5 साल के बाद क्या होएगा? क्यों सर? और बोलिए शशांक भाई। Bus the going on the market things. So friends, hope you enjoyed whatever you could, and all the best. One simple request: don't buy any damn Indian company. They are stupid. They are stupid. Okay, bye. Good night.